Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बहराम काजी है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज मुझे शिट here we go again नहीं कहना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान मैच जीत गई बहराम. Finally, I mean, it took them long enough. 1,348 days Yeah. without a test match win at home. Last time they won was against South Africa in February 2021. सबसे पहले तो मुझे ये बड़ी हैरत है कि मैं पहुंच गया हूँ शो के लिए. ठीक है, रात को 10 बजे मैंने जायद के साथ शो किया, फिर मैंने ओवरनाइट बस ली और तुम्हारे पास यहाँ पहुंचा हूँ नींद से उठ के. But डेडिकेशन ब्रो. Yeah, man, professionalism तो फिर तुम्हें पता, उस पर compromise नहीं कर सकते. Although you will have to explain this one to the missus because she was really looking forward to hang out on Saturday. Sorry. Yeah, and then Saadi was like, Sunday को नहीं, Saturday को ही shoot कर रहे हैं. I was like, चलो पहुंचता हूँ मैं. खैर 11 winless test matches at home, right? Yeah. इन 3.5 सालों में आपके थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 draws, 1 loss. इंग्लैंड के खिलाफ you got swept for the first time in a home series. न्यूजीलैंड 0-0 draw. बांग्लादेश के खिलाफ you got swept at home, जिनसे आप कभी टेस्ट मैच हारे नहीं थे, home या away. And then you conceded 8-23 versus England in that first test. To come back from that and actually end that 11 winless tests at home वाली streak, and also 6 back-to-back test losses, right? शान मसूद की कप्तानी में 6 टेस्ट मैच की कप्तानी की थी, जीते तो थे नहीं पाकिस्तान. ऑस्ट्रेलिया में हारे, क्लीन स्वीप हुए, बांग्लादेश से हारे, इंग्लैंड से फर्स्ट टेस्ट हारे और उसके बाद फाइनली जब सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनसे तो अब कुछ भी नहीं होगा, क्लीन स्वीप आ रही है एक और, they came back. Yeah, they came and back. in some style. I mean, they won by 152 runs at the end, right? That is a very, very comfortable भी क्या? That's Easy. not even the right word. Easy. It was a, क्या कहेंगे? Steamroll pass. Monumental कह लो in terms of, हाँ ज़रा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. बहुत ज़्यादा. हाँ, but basically 152 runs is quite a lot. Yeah. And Pakistan, you know, did reverse their fortunes. मेरी यार अपनी करियर में पहली दफा मैंने पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीतते हुए देखा when I've been covering a game, right? मैंने अब 9 टेस्ट मैचेस कवर कर लिए सादी. एक लॉर्ड्स में भी था, उसमें से वेस्ट इंडीज इंग्लैंड वाला. इंग्लैंड पहला हारा है तुम्हारे. हाँ, 4 इंग्लैंड के मैच देखे ग्राउंड से, इंग्लैंड 4 जीता था इस वाले से पहले, और पाकिस्तान के तो 7 देखे हुए थे, 2 draws and 5 losses. And they finally won a game. So this is something that I've never experienced before. It felt good कि कभी अब ऐसा भी शो करेंगे जो हमें मौका मिले तारीफ करने का. सादी, the last time they won a test match, we started this show. हाँ, श्रीलंका के गेम्स जो हम सीरीज जीते थे 2-0 जीते थे श्रीलंका में. That was the first episode, I think. या first few episodes were those ones. और तब से लेकर अब तक मैंने और साथ ने सिर्फ डिफीट्स पे ही बातें की हैं, और ड्रॉज पे भी नहीं बल्कि सिर्फ डिफीट्स पे बातें की हैं. टेस्ट में तो सिर्फ डिफीट्स, 6 consecutive losses, right? और उसके अलावा बाकी फॉर्मेट्स में भी हम हारे ही हैं. बिल्कुल, पाकिस्तान का बहुत बुरा साल जा रहा है. The only series they won is in Ireland, that T20 series जिसमें मैच हारे थे. ठीक है, so finally some respite, and as Shan said that this is a very important win because that gap between home test wins is unacceptable. और दूसरा यार, Pakistan is a very proud cricketing nation. It was hurting. Everyone needed this win. Okay, is a proud cricketing nation. है तो सही ना यार. हाँ, मतलब obviously you do pride yourself over being a decent cricket team. हाँ, and historically relevant cricket team जो कि बहुत flavor डालती है. One sport nation जो हम हैं वो क्रिकेट की वजह से ही हैं. वो भी मुझे डाई डाउन होता हुआ नजर आ रहा था, बट after the win yesterday I saw a change in the mood in Pakistani fans as well. Yes. Twitter was a happy place all of a sudden. खैर वो, to critique Pakistan fans when things are going well, there's nothing better, and they'll rejoice till they don't, or they lose their voice till they lose the next match. Till they lose the next match, और फिर उसके बाद बुराइयां होती हैं, तो वो भी बहुत एक volatile सी relationship. But then again, इतने अरसे में नहीं देखा था ये वाला सीन. बिल्कुल, लोग खुश थे भाई. हाँ, और पता है जिस तरह क्रिकेट खुश करती है आवाम को, काम ही चीजें उस तरह कर सकती हैं. I will say this though, I've seen some tweets which have said that Pakistan cricket is back, baby. No, a lot is still wrong with Pakistan cricket. Like, obviously, just look at how they won this test match, right? A lot of things had to go right for them. सबसे पहले तो reuse surface वाला gamble लिया. They rolled the dice with that. I mean, hindsight में भी देखो तो सही डिसीजन था, और उस वक्त जब वो सारा डिबेट शुरू होगी कि reused, मुझे थिंकिंग समझ आ गई थी. मैंने कहा हाँ ठीक है. नहीं, मुझे भी पसंद आया था डिसीजन, बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू वॉच अनदर टेस्ट ऑन अ रोड. ठीक है, हाईवे पे फिर से नहीं देखना था. हाउ वॉचेबल वाज दिस टेस्ट मैच? वेरी. इट वाज scintillating, tantalizing, riveting test cricket on offer, right? आप मतलब you could not take your eyes off. Well, you couldn't take your eyes off the screen, and I was there, so I couldn't take my eyes off the action. म्यूट करके. Yeah, उस पे आएंगे. खैर, reuse surface was a gamble. Why it was a gamble is because it made the toss very important, and you basically put all of your eggs in the toss basket. कि यार टॉस जीत गए तो चांस बन जाएगा.
I mean, हाँ बेहतर चांस बन जाएगा. I feel कि अगर तुम स्कोर्स भी देखो इस टेस्ट मैच में, हर इनिंग्स में ग्रेजुअली लो हैं. यहाँ पे चौथी बैटिंग करना बहुत मुश्किल होना था. बेशक होना था, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारे स्पिनर्स ने दी और जिस तरह का डेक वो बना हुआ था, they've been used to bowling in Pakistan, right? Domestic cricket में वो bowling करते रहे. I still believe टॉस हार भी जाते तो शायद रिजल्ट निकाल सकते थे हम. मेरे लिहाज से उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था जितना लोग कह रहे हैं. अच्छा, I do feel the toss was very very important here. I Very feel like important. for a toss dependent type scene. Very important for sure. And But I still believe Pakistan had the right combination in this test match to hurt England, even if they lost the toss. नहीं, there is no doubt about that. आपको पता था कि bass bowlers जो हैं, they do struggle versus spin. We talked about You that. had evidence. और हमने शुरू में भी बोला था कि what's the correct surface? तो वही slow sticky track हम कह रहे थे, ये जरा थोड़ा turner बन गया. Because obviously day 9 pitch पे end में वो बैटिंग कर रहे थे यार, तो कुछ फर्क तो पड़ना है उसका. I feel like reusing the same surface was the right idea because you were desperate. And ठीक है, आपने टॉस पे काफी कुछ छोड़ा है, because शान मसूद से जब पूछा भी कि what if you had lost the toss, तो उसका एक बड़ा funny reaction था. And I mean, Stokes said that both Shan and I knew how important this toss is. Anyone who has watched any cricket will know कि यार यहाँ पे पहली बैटिंग ही करनी है. Although I do feel कि पाकिस्तान में जब इस तरह की surface नहीं होती तो पहली bowling करनी चाहिए. But that is a story for another podcast, and I'm probably going to be working on a piece on that as well. ठीक है, but yeah, तुम्हारी वाली बात, not only was there the reused pitch and all that onus on the toss, but also Pakistan loaded their attack with spinners. ठीक है, आपके पास एक सीमर था सिर्फ इन आमिर जमाल, which was potential 7 spinners. Yeah, potentially 7 या 8 भी. 8वां कौन? Saud Shakil. I counted him. Saud Shakil, Saim Ayub, Kamran Ghulam, Salman Ali Agha. और हाँ बाकी 3. Yeah, you're right. Though that is 7. मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने काउंट किए थे 7 potential आपके पास spinners थे. Not that you really need to use any of them. वो तो साजिद और नोमी पायन ने काम कर दिया. आएंगे Nomi Payen पे special. हौसला. First, we just need to talk about the overall context because, of course, they had loaded their attack with spinners. एक आपके पास सीमर था, और जब शुरू में इंग्लैंड रिवर्स कर रही थी तो लग रहा था यार कि कहीं अकेला तो नहीं पड़ जाएगा आमिर जमालिया, उसको तो नहीं तोड़ देंगे. He also started hobbling. वो बैटिंग के दौरान वो भी लंगड़ाने लग गया था. अब मुझे कहा, मैंने कहा यार नहीं. Yeah, but खैर Pakistan didn't particularly need him. That's a different argument altogether. And they got the tactics right as long as they won the toss. Talk about the selection though, क्योंकि मैंने और तुमने शो किया और उसके बाद आसमान टूट पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट पे. You know, shit hit the fan because they dropped 3 of their most talented players on reputation. Yeah, absolutely. On reputation. On form उस तरह नहीं थे. I mean, look, when it comes to Babar Azam, ठीक है, there were obviously 2 sides to this coin. तुम वैसे इसको आखिरी टेस्ट मैच ही दे रहे थे जहाँ तक मुझे याद है. You were saying कि ये वाला उसको लास्ट चांस दो, मैं कह रहा था सीरीज दे दो. और उसकी तुक ये थी कि जो 2 sides of the coin है, obviously 18 test innings without a 50+ score. Ridiculous. Any other player, they would have already been dropped. Babar was getting that longer rope because he was Babar. ठीक है, दूसरी साइड ऑफ द कॉइन ये है कि यार आप आगे साउथ अफ्रीका जा रहे हो, वहां पे you'll probably need Babar Azam even if he's out of form. और इस तरह के बैटर को you give that longer rope and you just give them consistent time out in the middle. But then again, 9 tests is a long time. दोनों चीजें वैलिड है. ये नहीं कि वो वाली चीज वैलिड नहीं है. मैंने पोल भी किया सादी इस पे. आई थिंक 1300 and something people voted और 53% were for keeping the faith in Babar. 47% were like इसको ड्रॉप ही करना चाहिए. So वही है ना, 2 sides of the coin. And it was heavily polarized. अभी भी शायद comment section में आधे लोग बोलेंगे कि करना चाहिए था आगे. अब तो खैर when his replacement scores a ton. In hindsight तो करना ही चाहिए था, bro. Proved out to be the correct decision. But here's where I have a problem with this. The mid-series element of it. यार इससे ना आप बहुत ज़्यादा chaos create कर देते हो. You will upset not only people who are a part of your fan base, but potentially people who are playing for Pakistan, right? अगर fan base इतनी polarized है कि 53% wanted to keep the faith, तो टीम में भी तो इस तरह के ख्यालात होंगे. बेशक होंगे, लेकिन don't you think अगर इतनी ज़्यादा toxicity होगी थी between Shaheen and Babar and all of that, and पाकिस्तान मैच नहीं जीत रही, उसको थोड़ा सा साइड पे कर दो. ठीक है, मिड सीरीज हो या ना हो, यार जाओ यार, थोड़ा सा टीम का एनवायरनमेंट भी शायद बेहतर हो जाएगा and you guys will feel better. साथ ही अगर यार टॉस हार जाते and things would have gone bad, तो फिर हम फर्क पॉडकास्ट कर रहे होते और ये मेजर डिस्कस होता. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि that was a gamble and it paid off. Had it not, you would have ended up looking really stupid and silly. That's my point, right? But still, जो आपके टीम के बिलीव्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अब आकिब जावेद जो आया सिलेक्शन कमेटी में एंड ही इज रनिंग द शो, ही टॉक्ड अबाउट दिस इन 2-3 दिन पहले एक पॉडकास्ट में कि ये करो. ही हैड दैट आइडिया, ही हैड टू इम्प्लीमेंट एंड दैट आइडिया वाज इम्प्लीमेंटेड. ऑब्वियसली
आपने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन इट हैज टू प्ले आउट ऑन द पिच. बिल्कुल. इट कैन गो इन योर फेवर, इट कैन गो अगेंस्ट यू. लेकिन इफ यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इन यू, तो फिर तो आपको करना ही पड़ता है ना. वो हार जाते, ऑब्वियसली हम यहाँ बैठ के डिफरेंट बात कर रहे होते, लेकिन रिजल्ट सामने आ गया. देखो इसमें दो चीजें, अगेन देयर इज अ प्रो एंड देयर इज अ कॉन. कॉन इसमें ये है कि आप इनसिक्योरिटी पैदा कर देते हो, आप इस लेवल की केओस पैदा कर देते हो. आफ्टर सेइंग कंसिस्टेंसी 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 कंसिस्टेंसी, यू गो एंड डू समथिंग वेरी पीसीबी लाइक ड्रास्टिक मेजर्स, पैनिक बटन. कंसिस्टेंसी बोल कौन रहा था? जेसन गिलेस्पी. गिलेस्पी के पास कौन सी पावर्स रहेगी? एग्जैक्टली, और उस पे भी आते हैं. बट माय पॉइंट ओवर हियर व्हिच आई एम ट्राइंग टू गेट टू, इसके 3 इतने बड़े प्लेयर्स को आप एक टेस्ट मैच के बाद पूरी सीरीज से रिलीज कर दो. दैट इज वेरी ड्रास्टिक. दैट विल ऑब्वियसली क्रिएट हेडलाइंस, और इससे माहौल पोटेंशियली खराब हो सकता है. पोटेंशियली बेहतर भी हो सकता है. बहरहाल दो साइड्स हैं. अगर अभी तो आप जीत गए हो ना, इसीलिए बेहतर हुआ. तो मैं कह रहा हूं, अगर आप हार गए होते तो फिर मतलब मसला था, फिर क्वेश्चन मार्क्स और रेज हो जाते, और ज्यादा रेज होते. और इसमें एक और चीज जो अच्छी वाली ये है कि एटलीस्ट टीम को और अवाम को इस चीज से भरोसा हो गया कि इवन विदाउट दो सुपरस्टार्स पाकिस्तान कैन विन अ गेम. दैट इज अ गुड प्लस पॉइंट. आई थिंक एट दिस मोमेंट तो यही कहना पड़ेगा, विद दी सुपरस्टार्स पाकिस्तान 6 मैचेस में नहीं, इस साल 6 मैचेस में नहीं जीता. विदाउट देम जीता है. आई विल टेक यू वन फर्दर. विद नोमी पायन पाकिस्तान जो है वो जीतता है. लास्ट टाइम भी वो जब खेले थे तो श्रीलंका के खिलाफ 7 for ले लिया था, वो मैच जीत गए थे. 6 टेस्ट मैच बीच में नहीं खेले, फिर खेले, पाकिस्तान जीत गया. बट ऑफ कोर्स लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट्स नॉट एन एक्चुअल थिंग, बट आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर नोमी पायन एंड विल गेट टू हिम. नोमी पायन की बात ये मैं कर दूं एक कि शायद आप लोगों को लगता हो कि हम मजाक में कह रहे होते हैं. वी एक्चुअली डू लव हिम. आई एक्चुअली रियली लाइक नोमी पायन. हम ऑफ स्क्रीन भी ऑफ कैमरा भी यही बात कर रहे हैं. मैं तो लव यू नोमी पायन. इतना करीब था प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोमी भाई की जगह नोमी पायन करने के लिए, बट आई वाज लाइक नहीं यार, ये काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट भी किया हुआ था उसके अनप्रोफेशनल हो जाएगा. एज मच एज आई लव टू से नोमी पायन, नोमी पायन, नोमी पायन. अच्छा ना 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 नोमी पायन. खैर उस पे तो बाद में आते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट. बाबर की तो हमने बात कर ली. वी हैव डिस्कस्ड बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन एंड आई स्टिल थिंक मिड सीरीज वाज अ बैड आइडिया. आई थिंक इसकी भी 2 साइड्स हैं. एक चीज ये आ जाती है कि क्योंकि अब हाइंडसाइड में हम देख रहे हैं, आई थिंक इट वाज द करेक्ट डिसीजन. मेरे लिहाज से ये वाला टेस्ट मैच देना चाहिए था. अगर नहीं करता तो फिर आप उसे ड्रॉप कर देते. आई डोंट केयर अबाउट मिड सीरीज और नॉट, मैच है, ठीक है. आपने जब इस तरह की सादी चीजें करनी होती है ना, रेस्ट स्लैश ड्रॉप, तो आप ये सीरीज से पहले कर देते हो. इवन दो दिस वाज द मार्की सीरीज ऑफ पाकिस्तान, राइट? नहीं, साल की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज थी आपकी. मेरी बात सुनो ना, उन्होंने प्रोबेबली पहले सोचा ये होगा कि यार तीनों मैचेस में रखेंगे इसे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस, पहले टेस्ट में ही स्कोर्ड 35 रन्स ऑन दैट फ्लैट ट्रैक. तो I am not saying there is not any argument for removing Babar. I am saying that the timing of it is something I don't personally agree with. मुझे टाइमिंग से ज़्यादा इशू नहीं है. मुझे बस ये है कि जो भी बंदा ड्रॉप होता है ना, उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर प्लान शेयर होने चाहिए. अगर तो वो हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है. दूसरी साइड जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि फिर अगर इस मैच में ड्रॉप ना करते, अगले मैच में ड्रॉप ना करते, तुम जो कह रहे हो मिड सीरीज में ड्रॉप ना करो, साउथ अफ्रीका में तो फिर आप उससे मुझे नहीं लगता ड्रॉप कर सकते हो. नहीं, आपको वहां पे तो खिलाना ही पड़ेगा. और अगर वो कंसिस्टेंटली 5 मैचेस में फेल हो जाए, as good as Kamran Ghulam is, he is dodgy versus pace, and you don't really expect him to do wonders in Senna. And I would be happy to be proven wrong. And your middle order is dodgy against pace. Saud Shakil struggles. Rizwan isn't that great against pace. Shakil struggles big time. ठीक है. और वहां पे जहां पे lateral movement भी होगी और bounce भी होगा. South Africa is the toughest place for an Asian batter to go and bat. अब लोग कहेंगे कि ये आगे हैं बाबर को डिफेंड करने. मैं बाबर को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ बाबर is your most important player in South Africa. And I mean, we've painted all sides of the picture for you. And Shan Masood too. him I have high expectations from in South Africa. But आपको सारे पहलू दिखा दिए. Of course, आपकी अपनी राय होगी, हमारी अपनी राय. Saud and I are disagreeing on the show right in front of you. So let us know in the comment section below कि आपको क्या लगता है. And we don't want to make this episode about Babar at all because Pakistan has won. So let's move beyond him. But इस election पे और मैंने बातें जरूर करनी है. Selection पे. The Shaheen one made most sense. ठीक है. No issues with that. 6 टेस्ट मैच खेला था after he came back from that knee injury. ठीक है. और brought him back too soon. 5 में तो वो 41 एवरेज करा था बॉल के साथ. और बांग्लादेश वाले टेस्ट में ही 27.5 ओवर्स विकेटलेस. तीसरी न्यू बॉल का इंतजार करना पड़ता था उसे विकेट लेने के लिए, जो कि आपको वैसे ही कभी क्रिकेट में नहीं देखनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट में. तीसरी न्यू बॉल तक नौबत ही नहीं आनी चाहिए. सो हिज axing kind of made sense to me. I was fine with that. Saud wanted him dropped anyway. ठीक है. मैं तो कह रहा था, खैर इस मैच में तो नहीं, लेकिन मैं पहले से कह रहा था मीर हमजा को ले आओ. The Naseem one I didn't understand. They said niggle.
उन लोगों ने यही, मैंने काफी लोगों से पूछा भी है, मिसकम्युनिकेशन, उन लोगों ने कहा कि निगल हुई है नसीम को, क्योंकि जिस वक्त वो पॉट्स और कार्स रिवर्स कर रहे थे, मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही बात आई, नसीम होना चाहिए कि यहाँ पे नसीम होता तो यार ही इज योर बेस्ट रिवर्स स्विंग बॉलर, ही इज वन ऑफ द बेटर रिवर्स स्विंग बॉलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? और नसीम यार बेचारा अनलकी भी रहा था पिछले मैच में, यू नो, ही वाज ड्राइंग अ लॉट ऑफ फॉल शॉट्स, ज्यादा हमने बात की थी, पूरे स्टैट्स दिखाए थे, रूट वाला एलबीडब्ल्यू, द ड्रॉप्ड कैचेस। हाँ, मसला पता है क्या है कि लोग एंड पे फिगर्स देख लेते हैं कि हाँ ही डिड नॉट गेट विकेट्स, लेकिन अगर आप स्पेल बाय स्पेल उसका देखो ना, तो देयर वर सम स्पेल्स इन देयर दैट वर ब्रिलियंट, एंड ही वाज गेटिंग द बॉल टू रिवर्स अ बिट, he was getting the ball to reverse and I felt this was the match to play him in इस पिच के साथ, क्योंकि रिवर्स तो अब प्रॉपर शुरू हुई थी। खैर अगर निगल है तो आई अंडरस्टैंड, ठीक है, नहीं मगर अगर निगल है सादी तो why are you dropping him for the entire series? यही तो you should probably keep him for Pindi, because अभी शान ने खुद बोला कि we're not even sure if we can create a turning track in Pindi। पिंडी पिच पे एंड पे आएंगे मगर वैसे मैं तुम्हें एक लॉजिक फेंक रहा हूं कि उसको आप पूरी सीरीज से क्यों निकाल रहे हो? मैं बिल्कुल मानता हूं, you know, यही तो मसला है कि ना ट्रांसपेरेंसी हमारे साथ है, ना ट्रांसपेरेंसी प्लेयर्स के साथ है, पता नहीं क्या हर बंदा अपने आइडियाज लेके चल रहा होता है। वो अभी तो खैर अभी हम बहुत आइडियाज हैं, अभी हम टेस्ट मैच जीत गए हैं तो एवरीथिंग इज गुड, लेकिन ये चीजें होनी नहीं चाहिए। Look, it may look all rosy because Pakistan have finally broken that shit streak. The shit streak has come to an end. Of course, it's a word coined by our Jani of the podcast, Amar Zahir. तो credit जरूर देते हैं हम जहाँ से कुछ चीज सीखी हुई है। But yeah, look, I don't think Naseem should have been dropped for the entire series। अगर उसको मैच खिलाना भी नहीं था, और अगर तो उसको निगल नहीं है, वो भी नहीं कह सकते ना, इस पॉइंट पे हम क्या ही कह सकते हैं, अगर नहीं थी तो उसको मैच खेलना भी चाहिए था। I feel like he was going to be really potent with the reversing ball. But either way, it was a very bold selection call. Obviously they had broken the internet, ठीक है, और हर तरफ से यही बात हो रही थी। मैं डेवू में जा रहा था लाहौर for a day before I head to Multan, and that has to be the most entertaining डेवू ride ever. I was like, Pakistan is just being Pakistan again. Classic chaotic Pakistan. But देख लो ना फिर, reuse surface, toss, loading your attack with spinners, all of these bold selection calls, and then they go on and win a test match. Tell me if anything else screams Pakistan cricket more than that. After going on in 11 test winless run and at home and a 6 back-to-back losses wala run, ठीक है, crazy. That is Pakistan. It is flat out insane, very very bizarre, and I mean I just want to reiterate on this कि यार इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान cricket is back. There is still so much wrong. ठीक है, अभी आप इस मैच से सिर्फ पहले देखो all the drama that unfolded. मिकी की ट्वीट्स आई थी, बाद में केपी ने लिख दिया था। केपी ने बोला था कि पहले उसने बोला कि they don't train correctly. Some people asked him what you mean and he said कि यार ये लंबे घंटों के लिए ट्रेनिंग करते हैं मगर स्पेसिफिक्स पे ट्रेन नहीं करते, जो कि मैं और साथ कई दफा कह चुके हैं शो पे कि यार हर एक रोल के लिए, you know, within the team, different cricketers with different player profiles should have their own dedicated fitness regimes and training cycles. We're way behind. Even our PSL franchises are way behind this stuff. अगर वो ये बात कर गया केपी, तो इसमें definitely कोई ना कोई सच्चाई होगी. Even though I'm not the biggest KP fan, I'll be honest. I think KP at some times can be a bit of a yeah, he is. लेकिन उसको क्या पड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की बात करने का? उसने कुछ नोटिस किया होगा तो बोला होगा ना, उसको पसंद तो है। He said the talent is still unreal. उसने ये बात एडमिट भी की है, बट ये वाली बात हुई है मिकी की ट्वीट्स, केपी की ट्वीट्स, फिर वो वहाब वर्सेस वाला हुआ है, दैट हैपेंड राइट, और उसके अंदर वो उसामा मीर का जो एनओसी था, अकॉर्डिंग टू वहाब ही हैड ग्रांटेड उसामा वर्बल परमिशन और समथिंग लाइक दैट, उसने कोई चीज भी साइन की थी जो उस्मान वाला ने फिर एंटरटेन ही नहीं की। दिस इज ऑब्वियसली वहाब स्टोरी राइट, ये उसकी साइड ऑफ द स्टोरी है। वी आर येट टू हियर व्हाट उस्मान वाला साइड ऑफ द स्टोरी इज। नहीं, स्टोरी नहीं पता, लेकिन उसने बोला कि लेट्स टॉक अबाउट इट क्योंकि योर फैक्ट्स आर रॉन्ग। वहाब रियाज रिप्लाइड कि मैं प्रूफ दे देता हूं। वेल, वहाब रियाज probably has screenshots and emails and stuff like that, but the timing of it all is also interesting. Maybe there is a you know, I wouldn't want to say conspiracy, but a scheme going on to eliminate wala. हो ही सकता है। I mean, scapegoat बनाना तो यार, लेकिन खैर यहाँ पे बाएं हाथ का दाएं हाथ का काम है। लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करा, फॉर एग्जाम्पल हम तो यहाँ पे बैठे, आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ हिज परफॉर्मेंस एक्चुअली। आई डोंट थिंक उस्मान वाला इज डूइंग अ गुड जॉब, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इतना ज्यादा ड्रामा तो मैच से पहले हो गया है। फॉरगेट द सिलेक्शन कॉल्स राइट, ये वाले जो मसले हैं, केपी मिकी एक जगह बातें कर रहे हैं, वाला और वहाब ओपनली लड़ रहे हैं ट्विटर के ऊपर फॉर द वर्ल्ड टू सी। फखर को शो कॉज नोटिस सर्व हो गया राइट। फखर का वो ट्वीट करना बनता था वैसे यार। मुझे बताओ फखर भी साया है? पता नहीं, क्योंकि आई नेवर थॉट के फखर साया है। आई ऑलवेज थॉट के फखर की जो ट्वीट्स है ना वो जेन्युइन है। ट्वीट्स तो जेन्युइन आई वुड लाइक टू थिंक कि इवन इफ दिस वाजंट रिटन बाय हिम, it was definitely coming from him. मुझे ये फील होता है क्योंकि फखर ज़मान is that kind of character जो he doesn't hold back and he voices his opinion. Do you think वो ट्वीट करनी चाहिए थी फखर को? Yeah, it is only natural.
It is natural. जब इस तरह की चीज होती है तो कोई ना कोई ट्वीट जरूर आएंगी. And Fakhar Zaman is not one to hold back. हाँ, he is outspoken and I love that about him. लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है यार. लेना देना नहीं होगा मगर सिलेक्शन से तो नहीं है ना. उसका डिसेंट किया उसने. हाँ, उसका डिसेंट शो होना चाहिए कि पीसीबी की पॉलिसीज ठीक नहीं है. सिलेक्शन से उसका नहीं बनता ब्रो. That's not his thing to say. You do make a fair point. हाँ, कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है until and unless वो सिफारिश से आए या पैसे दे के आए तब बोले. लेकिन ये सिलेक्शन कमेटी की कॉल है. तुम you cannot say that, man. Yeah, I agree. And at that point, of course, emotions were heightened. And I can't believe that a lot of people would have been happy with all of the axings. Right? I was also very perturbed in the sense कि timing बहुत गलत है. I could see reasons for dropping Shaheen and Babar. ये नहीं मुझे नजर आ रहे थे. I was like ठीक है 18 innings है without a 50. बनता है. शाहीन का तो वैसे ही तू भी कह रहा था निकाल दो. मैं कह रहा था एक और टेस्ट देके देख लो. मैं तो नसीम वाला आपको बता दिए मैंने. आई स्टिल डोंट एग्री विद इट इवन इफ देयर वाज अ निगल. बट पॉइंट इज कि ये फखर की ट्वीट आ गई. वहाब वर्सेस वाला, केपी, मिकी. A lot of people started raising questions on कि सरफराज कैसे था मीटिंग में जब वो तो टीम का हिस्सा है. जो कि सही questions raise किए हैं. लेकिन फिर टीम का हिस्सा चला गया वो. Of course he is now working with those under-19 women. And Hasibullah has come in for him as a replacement. Which I think is good. I'm really happy with that. हाँ, अगर वो मीटिंग में था और फिर स्क्वाड में भी होता तो फिर मुझे इश्यूज फिर तो बहुत मसला हो जाना था. हेवी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाना था. And people are like, oh, so he's a senior member. Why can't he be there? Because he's not the captain. Right? सिंपल सी बात है. उस वाली मीटिंग में सिर्फ कैप्टन और कोच ही होने चाहिए आपकी. और मतलब लेकिन अगर मेंटोर को बुला रहे हैं वो जो मेंटोर्स यार द मेंटोर्स आरंट मेंटोर्स ना. यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ. नहीं तो फिर तो बनता है उसका ना. हाँ, लेकिन फिर दूसरी साइड पर रिटायर करे. फिर ट्रांजिशन देर में आई है. फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर करे. पहले हो जानी थी चाहिए थी ट्रांजिशन जो इसने अभी कर लिया. व्हिच आई एम रियली ग्लैड टू सी कि ही इज गॉन एंड ही इज नाउ वर्किंग विद दोस अंडर 19 वुमेन. एंड दिस शुड हैव जस्ट हैपेंड अर्लियर. एज सून एज ही गॉट दिस जॉब ही शुड हैव ट्रांजिशनड. अब वो थोड़ी देर आए दुरुस्त आए. बट चलो दैट वाज अनदर थिंग दैट वाज कॉजिंग अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी. राइट? इस पे सब लोग बातें कर रहे थे. And you know, the selection committee, we spoke about them in the last podcast we shot. Remember, हमने कहा था कि यार ये तो वक्त ही बताएगा कि इनको किस तरह असेस करना है. उस्ताद ये तो जीत गई है पाकिस्तान मैच. वरना सिलेक्शन कमेटी तो I swear to God ये पाकिस्तान मैच हार जाती ना ये. ओए मुझे एक क्लिप याद आ जाती है. They would have been taken to the cleaners. आकिब जावेद की एक क्लिप याद आ जाती है. वो पता नहीं जियो को शायद इंटरव्यू दे रहा था वहाँ पे. लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पे कह रहा था कहता बच्चे रो रहे हैं, मुझे गालियां पड़ी, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है. ये आकिब भाई तुम्हें पता है फिर एक कैरेक्टर तो है. बट आई टेल यू व्हाट, ही हैज हिज आइडियाज. ही इज वेरी रफ अराउंड द एजेस. इसको तो मैं मानता हूँ. एंड वो कभी कभार ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिससे मैं हेविली डिसएग्री करता हूं. बट ही हैड ए प्लान एंड इट वर्कड आउट इन दिस केस. या देखो, ही इज बीन इन द सिस्टम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. ही इज प्लेड क्रिकेट ओवर हियर. और जो भी वो करता है, खेलता है, उसके लिए एक obviously element of respect रहता है. I will give him credit for drawing up a war plan which had a chance to work. देखो you did gamble with the toss but it had a very good chance to work out and you won. Strategies होती है ना. अब क्या पता कोई और कोच हो, गिलेस्पी फॉर एग्जांपल ले लो, वो उसको हो कि नहीं दिस इज नॉट द टेम्पलेट आई वांट टू प्ले. ठीक है, आकिब कम्स इन, ही सेज नहीं ये वाला टेम्पलेट चलाना है. हर एक की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है. आकिब प्रूवन राइट बाय दिस टेस्ट मैच. लेकिन अब लॉन्ग रन में देखना है कि ये वाला वॉर प्लान चेंज करेगा वो या नहीं करेगा. और ये एग्जीक्यूट आप कर सकते हो. ये तो रीयूज सर्फेस थे, आपने बनाई तो नहीं है. आपने तो बस फिर से उसी पिच पे खेल लिया. राइट? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू क्वेश्चन ओवर हियर. हाँ. और आप, is this a feasible model going forward? I asked Shan and he said, "Nahi, I want to make a team which is adaptable and we can win in all conditions." But clearly, you were only able to win in one of those conditions, right? Out of all the different ones. Flat decks पे आप जलील होते हो. Green top पे भी आप susceptible हो जाते हो. You're bringing England spacers into the game. And obviously, your batters aren't that great against pace as compared to England. Yeah. In my opinion. लेकिन फिर भी वहाँ पे चांस निकल आता है आपका rather than a flat deck. मेरा पॉइंट ये कि हाँ ठीक है, शान की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि एक अडेप्टेबल टीम होनी चाहिए, हर कंडीशंस में खेलनी चाहिए. लेकिन अगर इफ़ यू थिंक ऑफ इट एज अ स्टार्ट, अगर आकिब जावेद का पहला टेस्ट मैच था तो फिर मुझे समझ आती है ये बात. अच्छा ठीक है, एक चीज कर लिया, अब नेक्स्ट करके दिखाओ क्या कर सकते हो. Exactly. क्योंकि पिंडी का आई एम 100% श्योर स्पिनिंग ट्रैक नहीं बन सकता. और इस पर हम आएंगे. और आई नो इट. We're spending a lot of time talking about all of these things which aren't related to the game, or well, kind of are, but ये kind of एक preface कर रहे हैं हम गेम को. But यार हमें तो मौका ही नहीं मिला इन चीजों को address करने का. So I feel like it's very important कि अभी हम we get this stuff out of the way and then we properly come to the game. If you are, you know, a bit agitated, तो आप थोड़ा forward कर लो. Time stamps लगे. Time stamps वगैरह लगे हुए. ठीक है. अच्छा, एक तुमसे सवाल है मेरा.
मैंने पहले भी बात रेस की थी कि यार आपने 5 सेलेक्टर्स बना दिए हैं, अजहर अली, असद शफीक, हसन चीमा, अलीम डार, and then Aqib Javed, and then you have the coach and captain who we have now been told have no say in the selection anymore. Even in the playing 11, I've heard कि उनकी कोई खास say नहीं है, which I don't agree with personally. मेरे ख्याल से उनकी होनी चाहिए. और ये तो पता नहीं behind the scenes exactly क्या चल रहा है, but this was clearly an all Aqib decision from what it seemed. ठीक है, third person perspective. मुझे बताओ यार, अगर तुम एक सिलेक्शन कॉल मेक कर रहे हो 7 या 5 बंदों में और 4-3 या 3-2 स्प्लिट हो, aren't too many selectors spoiling the broth? They do. मैंने पहले भी बात रेस की थी. They do. Obviously फिर किसका होगा वोट फाइनल? किसके तो, पास डबल वोट है? और कोई ना कोई तो वहां से तपा हुआ निकला था. यू आर आस्किंग फॉर एनार्की अ बिट, एंड वही मैं कह रहा हूं कि ये तो आप जीत गए हो. अगर आप हार गए होते तो वो एनार्की हमारे सामने प्ले आउट कर रही होती. सो दीज आर्ट आइडियल वेज टू गो अबाउट थिंग्स इन माय ओपिनियन, एंड देयर शुडंट बी ए पावर डायनामिक वाली चीज इन दैट सिलेक्शन कमेटी के एक बंदे का वोट ज्यादा बड़ा है क्योंकि आकिब भाई इज सीनियर ओवर देयर. पीपल वुड बी अ बिट, यू नो, आई वुड अज्यूम कि वो थोड़े बैकफुट पे रहते होंगे आकिब जावेद के साथ. I mean he is outspoken. And good thing is that he is not Qalandar's head coach anymore. तो चलो वो तो एक जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ क्या होगा वो खत्म है. He's resigned, so good on you. That is definitely a good move. But I still feel Aqib Javed is coming to take over the reins from Gillespie. You feel that way? Yeah, I'm very, very uneasy with the situation where there are 5 people in the selection committee and then your coach and captain and everyone will have different ideas, और जो भी आप decision make करोगे कुछ ना कुछ लोग वहां से तपे हुए निकलेंगे. इसलिए maybe you know in hindsight आपको सिर्फ 2 selectors at best रखने चाहिए या एक ही chief selector होना चाहिए. chief selector एक रखो फिर बाकी टीम रख लो. हाँ, ऐसा कुछ करो क्योंकि ये तो यार अभी तो चल गया आपका. Your strategy worked, your tactics, you know, bore fruit. But is this even feasible in the long run? I have major doubts over this. And I know Pakistan मैच जीता है, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि हम कोई बहुत रोजी आकर बातें करेंगे. I feel like no one else is going to address these things. नहीं, तो इसलिए करना जरूरी है. On a serious note, we're happy with the win. Very, very happy. बहुत ज्यादा जरूरत थी पाकिस्तान को इसकी. We don't want to get ahead of ourselves though. मेरा मसला ये है कि ये थी मुल्तान की रीयूज्ड पिच जहां पे ये स्ट्रैटेजी आप काम कर सकते हो. शायद इन द फ्यूचर मुल्तान में आप इस तरह की विकेट्स प्रिपेयर कर सकते हो. शायद लाहौर, कराची, हर एरिया डिफरेंट है ना. पिंडी, यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्वियसली डिफरेंट कंडीशंस होंगी. तो यही वॉर प्लान लेके चलेंगे आगे या एडेप्टेबिलिटी लेके आएगा आकिब जावेद? सादी तुम्हारी वाली बात है ना कि अगर यही वॉर प्लान लेकर आगे चलना तो फिर कराओ आज से मैच कोई पिंडी में, वो पिच यूज हो ताकि प्रॉपर्ली फिर आपको रीयूज सर्फेस मिले. ऑनेस्टली इफ यू प्लान दिस स्टफ प्रॉपर्ली, इफ रीयूज सर्फेसेस आर द वे फॉरवर्ड तो करा लो मैचेस, कोई मसला नहीं. ठीक है, डेवलप योर स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंट इट. ए टीम का साथ टूर रख दो, उनको पहली पिच दे दो, दूसरी पिच आप असल वाली नेशनल टीम को दे दो. या कायदे आजम ट्रॉफी और ये खिलाओ उधर मैच. आई वुड मच रादर हैव रीयूज सर्फेसेस एंड टेक द टॉस गैम्बल एज अपोज्ड टू वाचिंग क्रिकेट ऑन दैट हाईवे. उस पे तो जहाज उड़ सकता है, उस पे क्रिकेट तो होनी नहीं चाहिए. अब मुझे मसला पता है कि दे आर गोना स्क्रू इट अप. मुझे आई एम स्केप्टिकल ऑन दिस पार्ट. चलो ठीक है, park that चलो, thought. चलो. Abhi, let's not get ahead of ourselves because we have a game to talk about, right? But I do want to talk about the reuse pitch a bit. Of course, both of us are in agreement ke ठीक किया. I liked the radical idea. And if I observed the pitch, it only got worse. ठीक है, for batting. अगर आप शुरू में देखो तो इंग्लैंड का सिर्फ नया बॉल ब्रेक कर रहा था. स्पिनर्स जो है नए बॉल से ब्रेक कर रहे थे. 6th ओवर में आ गया था लीच. हाँ, बल्कि इन हाइंडसाइट दे शुड हैव ओपनड विद, क्योंकि नए बॉल के साथ काफी ब्रेक मिली थी इंग्लैंड के स्पिनर्स को. और उसके बाद वी सॉ देयर सीमर्स रिवर्स द बॉल. ठीक है, दैट वाज फर्स्ट डे पिच. Those little spells by England with the ball were brilliant. शानदार. उन पे भी सही तरीके से हम आएंगे. We'll discuss everything under the sun. Don't worry about it. This is going to be a marathon. सही है, तो as usual. हाँ, और ये वाला तो बनता भी है मैराथन यार. मतलब ये वाला नहीं तो फिर कौन सा. So 10 marks out of 10 on going for that thought कि यार कर लेते हैं सेम पिच इस्तेमाल. I know, I remember Kamran Ponson भी tweeted this as a joke. कि उसी को इस्तेमाल कर लो as a science experiment. Well, that happened, and you know it turned out to be fruitful for Pakistan. All here for it, and I love the fact कि you know शुरू में सिर्फ नई बॉल ब्रेक कर रही थी और थोड़ा रिवर्स कर रहा था बॉल. चीज का एक आ गया ना प्ले. आगे जब हम मैच में गए, पाकिस्तान की जो बॉलिंग इनिंग्स आई पहली, उसके अंदर आई रिमेंबर साजिद इवन मेंशन कि यार पैचेस से यू नो आउटसाइड ऑफ स्टंप इस तरह परचेज मिल रही है, बीच में नहीं मिल रही, डाउन द मिडिल कोई परचेज नहीं मिल रही. एंड दैट वाज यू नो हाउ द पिच वाज काइंड ऑफ इवॉल्विंग. और बाय द एंड ऑफ इट यू नो हर जगह से टर्न मिल रही.
Down the middle भी turn मिल रही But then again, it wasn't a dangerous pitch. It wasn't a dangerous pitch. It was a very tricky pitch. It was a tough pitch to bat on, but it was not a dangerous pitch. और यही मुझे था कि मैंने कहा यार ये dangerous ना हो जाए, क्योंकि फिर तो unless तुम बेन स्टोक्स के बैट के नीचे खड़े हो तो वो जो उड़ गया था, इतना ऊंचा मैंने कभी वो बैट dangerous play था, उड़ते हुए देखा नहीं अपनी जिंदगी में। तो वो तस्वीर देखी है तूने? क्या कमाल विजडन ने लगाई हुई थी, मैंने देखा। It looks like an edit. Beautiful. फोटोशॉप लग रहा है, वो लग ही नहीं रहा कि बैट इतना ऊपर जा सकता है। और मैं तो प्रेस बॉक्स में था, मैंने कहा शिट यार तो बहुत ही ऊपर चला। सो खैर आउटफील्ड स्लगिश ही थी थोड़ी सी इस टाइम पे भी, चौके उस तरह नहीं लग रहे थे एटलीस्ट शुरू में, ठीक है। सो आई was fine with the conditions. I think इसी तरह की conditions होनी चाहिए. Whether they can be replicated or not is a completely different story. Because you want to be able to replicate conditions. If you want to create a template. टेम्पलेट का मतलब यही है। तो वो अडेप्टेबिलिटी वाली बात सुनकर ना मुझे हो रहा था थोड़ा कि अच्छा पिंडी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, तो देखते हैं क्या करते हैं। और अभी विल कम टू द पिंडी पिच लेटर। इट्स फनी हाउ पाकिस्तान वेंट फ्रॉम टेकिंग नो विकेट्स एट होम to two bowlers taking 20 wickets at home in the same test match, right? Nomi Payen ने 11 लिए हैं, साजिद ने 9 लिए हैं. They both accounted for all 20 English wickets, and this is only the 7th time in history in 147 years of test cricket that this has happened कि दो ही bowlers ने 20 wickets ले लिए. और last time was 52 years back, man. 1972 में डेनिस लिली और बॉब मैसी ने किया था ये इंग्लैंड को, दोनों कंबाइन करके 20 विकेट ले गए थे. तो that is remarkable to say the least. उससे पहले भी this is the second Pakistani player to do it. फजल महमूद और Khan Mohammed ने ली थी. Yeah, and these two bowlers, you know, I've always felt that when there's some help in the surface for them, they're really good. वो जाहिर बात अगर आप इस तरह की पिच पे खिला दोगे जहाँ पे इनको कुछ मिल ही नहीं रही परचेस, तो फिर तो वो कोई खास नहीं करेंगे. अब साजिद को ऑस्ट्रेलिया में ना खिलाओ ना. बुरा नहीं खेला था वैसे. नहीं. एक इनिंग्स में 2 for 49 इस तरह कुछ था. लेकिन ना खिलाओ ना अगर नहीं वहाँ पे. देखो एक इससे फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान को थोड़ा आइडिया हो गया कि who their best spinners are. ठीक है. So that is definitely a plus. Azam Mahmood को भी शायद idea हो गया. Of course they had. It's funny how none of these guys were in the starting 11 for the first test. So none of them were deemed worthy enough to be a frontline spinner. And then they played all of them. और फिर Nomi Payen और साजिद कर गए काम. तुमने फर्स्ट टेस्ट की बात की है इस पूरे साल क्या? नोमी पायन ने लास्ट मैच वो खेला था. वो हमने जब शुरू किया पॉडकास्ट. और साजिद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था साजिद. तो मगर बीच में बड़ी देर साजिद नहीं भी था ना. बांग्लादेश वाले सीरीज के बाद वो उस तरह नजर नहीं आया. अब देखो ना, you use your bowlers, you use your spacers spinners according to the conditions. Bangladesh में it made sense to play Sajid. Australia में it doesn't make sense to me unless it's Sydney. Yeah, it was Sydney, no? हाँ, लेकिन वो इसलिए आया था क्योंकि अब्रार हो गया था और नोमी भाई को भी कोई बुखार हो गया. नोमी पायन भी ठीक नहीं थे. तो और एक और चीज ये कि यू नो आफरीदी ने वो ट्वीट कर दिया था कि आई एम फाइन विद रेस्टिंग योर प्लेयर्स एज लॉन्ग एज यंगस्टर्स आर कमिंग इन, एंड लॉट ऑफ पीपल वर लाइक ये यंगस्टर्स तो है नहीं. नोमी पायन इज इजीली 40+, साजिद भी 30+ है, ठीक है. बट ऑन द फ्लिप साइड proven performers in domestic who have done the hard yards, वो आकर उनका चांस ज्यादा होता है परफॉर्म करने. यार इस चीज पे ना मैं I'm a bit torn between these two things. हाँ ठीक है, एज नहीं मैटर करनी चाहिए when you're obviously playing at a high level, right? अगर आप फिट हो, परफॉर्म कर रहे हो, एज shouldn't matter. लेकिन अगर आपने अगले 10, 12, 15 साल ज़हन में रखे हुए कि एक हमने इस तरह का टैलेंट पूल बनाना है, तो फिर थोड़ा सा इशू है. सो आई एम टॉर्न बिटवीन दी. 12-15 साल वाली सोच यहाँ पे ऐसा जती है नहीं. यहाँ पे स्टॉप गैप सॉल्यूशंस चलते हैं और इस वक्त तो आई गेट इट. इस वक्त तो जरूरी था. You needed to break the cycle. So I wasn't too perturbed with the fact that they've gone with these particular spinners. I know कि a lot of people wanted Mehran instead of ahead of Zahid, which चलो शायद फिर हो जाता वो, मगर चलो they went with experience. और अगर आपको कोई टेस्ट मैच जीतना ही है, you want to break the cycle, you know, end that shit streak. तो इस तरह की I think it was a good selection call with these spinners at least. Yeah, देखो I wasn't too keen जब हम लास्ट पॉडकास्ट में भी बात कर रहे थे, but at the end of the day obviously इन दोनों ने परफॉर्म किया है and kudos to them and thank you to them as well कि ये उन्होंने परफॉर्मेंस दी. and I feel पाकिस्तान में जितने भी मैचेस पाकिस्तान खेले या सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में जितने भी मैचेस ये खेले, जब तक ये दोनों परफॉर्म करें इन्हें खेलना चाहिए. बिल्कुल एंड दे बोथ टर्न द बॉल इन डिफरेंट डायरेक्शंस. दैट हेल्प्स. तो इन टैंडम बॉलिंग कर सकते हैं. एंड यू नो आई जस्ट लव्ड द एग्रेशन दैट साजिद ब्रॉट टू द टेबल. ही हैज गॉट दोस क्रेजी आईज, राइट? एंड ही वाज डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच. यार आई नो साजिद took 9 and Nomi Payen took 11, but Sajid took his 7 wickets for 111 runs in the second innings. And those were tougher innings to bowl, tougher conditions to bowl.
बोल ठीक है, फॉर स्पिन है उसका 7 फिर ज्यादा वैल्यूएबल है यार, जो उसने कोलैप्स किया एक ट्रिगर, कोलैस्प ट्रिगर किया उसने इंग्लैंड का, 211 for 2 थी इंग्लैंड, वहां से वो 225 for 6 हुए और दिन खत्म हुए। उसके बाद 262 for 9 हो गए थे, वो तो आखिरी पार्टनरशिप ने 29 रन मार दिए, तो वो आ गए 291 पे और व्हाटएवर। मगर वो जो 211 for 2 to 225 for 6 है ना, उसमें साजिद का बहुत बड़ा हाथ है। एंड आई मीन ही लिटरली वन द चैंपियंस कप फाइनल, ठीक है, अभी रिसेंटली। हाँ, चैंपियंस कप फाइनल में वो आया था और उसने जितवाया था, प्लेयर ऑफ द मैच था वो, और ही हैड अ वेरी इकोनॉमिकल 2 एंड ही picked up big wickets, और वो पहला मैच था उसका चैंपियंस कप फाइनल का, ठीक है, वो he hadn't played the entire tournament, and then he goes on and earns this player of the match award in this test match. So साजिद का तो बहुत अच्छा महीना गुजरा। ब्रो, तुमने तो सिर्फ बॉलिंग की बात की है, कितनी क्रूशियल पार्टनरशिप दी है उसने सलमान अली आगा के साथ। 65 run partnership with Salman Ali Agha in the third innings. This was Pakistan's highest third innings score in 2024, ठीक है, on a testing track, bro, जहाँ मुश्किल थी बैटिंग करना। वो तो जब it was funny, I was laughing my head off के पाकिस्तान का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर इन थर्ड इनिंग्स इस साल में, हालांकि we've played on flat tracks. Yeah. That's the really surprising bit, right? 823 रन मार के गई है इंग्लैंड और आपने इनिंग्स डिफीट खाई है, तब आप 220 पे आउट हो गए थे, इस दफा आपने 221 कर लिए, बट दिस 221 was worth a lot more, yeah, because it was tough out there, बैटिंग करना मुश्किल थी, but you know साजिद का जो overall the character is a lot fun, like you love to see characters like these in cricket, जो कि who are up for the challenge, who have a bit of aggression, उसकी आंखें फट फट कर जब आपको देखती हैं, stares right through your soul. I think वो उसका थोड़ा सा कोई इशू है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठ के वो मुझे भी आंखें दिखाई हैं उसने, हालांकि जान के नहीं, हर एक को दिखाई है, उसका कुछ होगा। Like a bald man with that twirly mustache and the beard, and perfectly cut beard, proper villainous feels है उसकी, and Pakistan cricket needs this sort of character. And that celebration. और वो celebration, खैर वो we've seen that from अपना शिखर भी, और वो भी करता था some bowler, I forgot the name. वो तो इस मैच में तो नोमी पायन ने भी किया। नोमी पायन ने फिर उसको नोमी पायन की सेलिब्रेशन है बहुत क्यूट है यार, बहुत ही क्यूट सेलिब्रेशन है उनकी। मगर साजिद आई थिंक सही बंदा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड साथ गया, 100%. He deserved it the most. हाँ, उसने वो 22 रन किए, जिससे तुमने बोला 65 रन पार्टनरशिप विद सलमान, आप 221 पे पहुंचे ही साजिद की वजह से, ठीक है। उसके बाद यार वो जो रूट को भी बातें की हैं उसने कि यू आर माय ड्रीम विकेट एंड आई गॉट योर ब्रदर आउट, इंग्लैंड में खेल रहा था क्योंकि साजिद। दीस आर द थिंग्स आई लाइक टू सी, आई लव टू सी दैट। एंड उसकी एक और बहुत अच्छी बात जो लगी है ना, क्लैरिटी ही हैज ऑन हिज व्हाट हिज रोल इज। यार जब मैंने पूछा इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, तो उसने पूरा सही तरीके से मुझे बता दिया कि यार पैचेस से टर्न हो रही है, अभी बीच में से टर्न नहीं हो रही, तो अभी भी बहुत अच्छा विकेट है बैटिंग करने के लिए। दैट चेंज्ड, बट उस पॉइंट पे उसकी असेसमेंट बिल्कुल ठीक थी। ही हैड फैंटास्टिक प्लान्स फॉर हैरी ब्रुक। आई डोंट नो अगर तुमने वो देखा नहीं, एबी ने सवाल पूछा था ये अबू बकर फ्रॉम प्रिकविक, एंड आई इवन टोल्ड हिम आफ्टर दैट, आई वाज लाइक दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन यू हैव एवर आस्क्ड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उसने बात की हैरी ब्रुक की और उसको डिसमिस आपने किस तरह किया, क्योंकि जाहिर है ब्रुक ने अभी 317 मारा हुआ था। तो साजिद सेड दैट आई वाज वाचिंग द टेस्ट मैच पहला वाला इन पेशावर एंड आई नोटिस्ड दैट ही कैंप्स अ लॉट ऑन हिज बैक फुट व्हिच ही डज, और उसने उसी तरह उसको बोल्ड मारा व्हेन ही वाज कैंपिंग ऑन हिज बैक फुट। तो देखो ना, he's an intelligent cricketer and he has all of these plans and he has worked really hard. Son of a former army man as well, तो वो patriotic भी उस तरह का है, and you can tell that he really loves to represent and don that star. इसने ये बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की है। और यार अगर तुम इसकी अपनी गेम देखो, इनिंग्स शुरू हुई है तो यार पहले he's fumbled that run out. Bro, ठीक है, ट्रॉली वाला मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार आज फिर बुरा दिन, हाथों से विकेटें तोड़ दी, बैड फंबल, ठीक है। उसके बाद इसने चौका खाया और फिर आउट कर दिया। अच्छा, वो फंबल पे भी ना द कॉन्फिडेंस जिसके साथ अंपायर को कह रहा आउट है, शान को कह रहा आउट है। खैर वो तो साजिद इज दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर, बट देखो फंबल हुआ, उसके बाद इसने फौरन चौका खाया, ठीक है, और उसके बाद इसने एलबीडब्ल्यू किया जो रिवर्स हो गया। आपका कॉन्फिडेंस सही तरह की हिट ले लेता होगा, इंग्लैंड तो उस वक्त मार रही थी, टू कम बैक फ्रॉम दैट व्हेन ही केम ऑन टू बोल अगेन एंड ही टुक 7 for 111 and then ultimately 9 wickets in the game and walks away with player of the match. He's got 2 player of the match awards in 9 test matches now, more than क्या था Shaheen and Babar or whatever. And I'm not throwing shade at them, but I'm just saying कि when Sajid is on a tear, when he's doing well, तो आपको मैच जिता सकता है। मैच विनर है साथ, मैच विनर 849 लिया था ना इसने बांग्लादेश के खिलाफ भी इसने शानदार बॉलिंग की थी, राइट। जहां भी थोड़ी सी असिस्टेंस मिल रही हो तो ऐसा ना समझो कि हमारे पास स्पिनर नहीं है, और आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि किस तरह क्यूरेट करना है सर्फेसेस को ताकि असिस्टेंस मिले, क्योंकि अगर नहीं मिलेगी ये पिटेंगे। अब ये ना हो कि पिंडी में वो वाली असिस्टेंस ना हो और 3 स्पिनर खिला दो, फिर क्या करोगे? फिर तो ये हो सकता है, फिर पढ़नी है ना, फिर तो पढ़नी है। मगर चलो, इंग्लैंड आर स्टिल अ लिटिल डॉजी वर्सेस स्पिन। हाँ, लेकिन अगर आपको असिस्टेंस नहीं मिल रही तो फिर
बात तुम्हारी ठीक है, और शान ने कहा तो था कि वो पहुंच गए क्यूरेटर्स वगैरह। टोनी हेमिंग मुझे नजर नहीं आया कोई डे 3 ऑनवर्ड्स, उससे पहले तो मुझे मिलता था रोज। वो अभी भी न्यूज आई हुई थी कि आकिब जावेद भी पहुंच रहा है आज ही टोनी हेमिंग से मिलने। वो देख रहे होंगे पिंडी पिच का क्या बन सकता है, कैन इट टर्न और नॉट, एंड इफ इट वोंट टर्न देन इट विल बी एन इशू। बट अगेन हम फिर आगे निकल रहे हैं। साजिद की बात हो रही थी, जस्ट अ काइंड ऑफ कैप ऑफ ऑन यार वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए हम वापस आ जाते हैं उसके ऊपर। टू कैप ऑफ ऑन साजिद, लुक आई लव द फैक्ट दैट ही गेट्स अ लॉट ऑफ रेव्स ऑन द बॉल। ठीक है, that's a very good thing about Sajid. He has a brain. He uses it, and he's got that, you know, charisma ko ya jo bhi, just the general energy that he brings to the field. Like passion. I love to see that. I think that Pakistan cricket में थोड़ी चीज missing भी थी, जो कि उसकी through आपको मिली है वापस. And he's just a fun character who's going to put his heart and soul like on the field. He's going to give it everything. He'll leave 110% out there. For sure. Fantastic asset, and hopefully Pakistan will continue to, or manages to continue to curate surfaces which can help Sajid, because वही वाली बात है, नहीं करेंगी तो फिर मुश्किल है। अब देखो साजिद का एक तरफ एग्रेशन उठाओ, दूसरी तरफ नोमी पाइन की क्यूटनेस उठाओ। नोमी पाइन तो तुम do you want to get come there now? आ जाए नोमी पाइन, ना 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 नोमी पाइन, बोलो बोलो नोमी पाइन, पियो पियो नोमी पाइन। ओके हाँ पी भी लगा नोमी पाइन के नाम का ग्लास लगा भाई, नींबू पानी का ग्लास लगाओ, क्योंकि नींबू पानी का गाना था। I absolutely adore the man. मुझे तो बंदा पहली बार पसंद है। If you've been following this podcast, you already know that this is a Nomi Payen fan club. ठीक है, and granted that, look, I think Sajid's bowling performance was better. Nomi Payen ends up with 11 for 147 in the game, his best ever figures in a game, by the way. First 10 for 5 fifers now. 5 fifers, 1 10 for, और ठीक है second innings में यार he took that 8 for 46. He completely steamrolled England, and those are the best figures for a Pakistan bowler in Pakistan since Abdul Qadir. Abdul Qadir ने 87 में 9 for लिया था, तब से लेकर अब तक नोमी पाइन के बेस्ट फिगर्स हैं। और साजिद ने भी पहले जब 7 for 111 लिया ना, that was the best effort since 2000 for a Pakistan bowler at home. सकलैन मुश्ताक ने 8 for लिया था तब, 1 for 140 something। हाँ, जब पाकिस्तान का ऑफ स्पिनर साजिद खान ने मुश्ताक अहमद ऑफ स्पिनर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो भी एक क्रिकेट पाकिस्तान ने अजीब ही हाउलर किया हुआ था, कसम खुदा की। someone probably lost their job or should have been at least suspended at the very least. Yeah, given a warning, man. नोमी पाइन को कंडीशंस बहुत अच्छे तरीके से सूट कर रही थी, and he knew exactly what to do. They attacked him a lot. काफी विकेट तो नोमी पाइन ने फेंकी है, मगर फिर एक वो जो क्रॉली को आउट किया, जो डिप थी उस बॉल में, जिस तरह वो मरी है और टर्न की है, completely beat him all ends out. उसके बाद लेटर ऑन इन दी इनिंग्स बहुत ज्यादा लूप दे रहा था। ये कमेंटेटर जिनको मैं सुन नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने भी बात की थी कि परफेक्ट स्पीड के साथ आ रही थी वो बॉल और विद अ लूप। यस, सो स्मार्टनेस, और नोमी भाई ने ये बात भी की, नोमी पायन ने ये बात भी की है। आई थिंक इट वाज वो ज़ैनब अब्बास के साथ शो नहीं होता ऑन द पिच, तो उसके ऊपर उसने बात की है कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो था कि आपने देखना है, ऑब्वियसली अटैक करेंगे वो, लेकिन आप किस तरह अपनी पेस और डिफरेंट वेरिएशंस लेके आ सकते हो। That was so key. यार ये साजिद ने भी बात की है, ये नोमी पाइन ने भी बात की है। So their domestic performance, यार, they've been in this business day in day out. दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और पोस्ट मैच इंटरव्यूज में बार बार ये बोला है कि यार सरफेस वाज स्टिल ऑल राइट टू बैट ऑन, एटलीस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट, यू नो। एंड में चौथी इनिंग्स में तो वैसे ही इट बिकेम अ बिट ऑफ अ माइनफील्ड। थर्ड इनिंग्स में भी नीचे डाई डाउन हो गई, माइनफील्ड बन गया था इवेंचुअली, बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यू नो, यू हैड टू बी स्मार्ट विद योर बॉलिंग, बोथ ऑफ दोस गाइज, साजिद एंड नोमी पाइन. They mentioned कि यार pace variation is absolutely critical over here, and I think that, you know, they were two seasoned performers and experienced heads who knew exactly what to do. वो pace variation वाली चीज़ आपको खुद ब खुद तो नहीं समझ आ जाएगी, उनके पास इतना तजर्बा था डोमेस्टिक का भी खास तौर पे, and they've been fringe players for Pakistan, that they realized कि ये चीज़ करनी चाहिए. और Nomi Payen again wasn't as good a bowling performance as Sajid, this because he took that 8 for in the fourth innings. That was a bit easier, I suppose, but it's an 8 for nonetheless. और Nomi Payen 11 विकेट ले गए मैच में, not to mention his clutch runs in the first innings. Beautiful. कुछ 30-31 इस तरह कुछ आकर Nomi Payen कर गए थे यार. मैं तो क्या खूबसूरत लारा वाली शॉट ने मारी है, लारा वाली फ्लिकिंग मार गए Nomi Payen. सुना था तुमने वो? हाँ, मैंने नहीं सुना था, ऑब्वियसली मैं प्रेस बॉक्स में था. नहीं, उसके बाद ट्विटर पे वीडियो आई. ऑब्वियसली उस तरह तो मैंने बड़ी चीजें सुनी. उसने तो रिजवान भी बोला था कि दिस इज व्हाई आई डोंट बिलीव ऑन DRS. और सलमान अली आगा भी कोई स्वीपिंग का मजाक उड़ा रहा था, शान मसूद का मजाक उड़ा रहा था. अच्छा. इसकी स्वीप भी हमारे स्किपर जैसी है. स्किपर या कीपर पता नहीं क्या कह रहा था. स्किपर था, वो स्किपर बोलते हैं. अच्छा. नहीं, अगर वो कराची का तो नहीं है. उसने स्किपर बोला. उसने स्किपर बोला. मैं भी स्किपर ही बोलता 4 दफा सुना मैंने. हाँ, वो लोग पीछे पड़ गए थे ना कि बाबर पे मजाक उड़ा रहा है. एक तो ये अवाम भी पीछे नहीं छोड़ती, पता नहीं, आई डोंट नो, आई हैव नो आईडिया, बट बाबर पे बहुत बात नहीं हो रही. रिजवान पे
मुझे तो लगता है डिबेट हो रही थी कि कीपर बोले या क्या बोले स्वीपर, पता नहीं जो भी था, इट सीम्ड really harmless, but I think intelligent spells थे दोनों के, like you said, pace variation, very important to mention that. Then both of them scored clutch runs. I can argue Sajid's clutch runs were more clutch because they came in the third innings, and that partnership with Salman and Agha really set Pakistan up, right? You wouldn't have gotten to your highest ever third innings total in 2024 without that partnership, right? Or without some of the help from England's fielders, which we will come to as well. Thank you. यार नोमी पायन के अब तुम अगर फिगर्स देख लो, आखिरी 2 मैच जो खेले उसमें एक में 7 for 70 समथिंग लिया था श्रीलंका के खिलाफ, और अब आकर 11 विकेट ले ली, इंक्लूडिंग दैट 8 for 46. उसने बोला भी है नोमी पायन ने कि मतलब लास्ट टाइम जब मैं खेला था तो अच्छी परफॉर्मेंस थी. तो नोमी पायन की यार 18 विकेटें उनके आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में, और we all agree कि नोमी पायन is not in his late 30s. नोमी पायन कम से कम 41-42 के तो है ही है. Fit dude. Not fit. I won't take that away from him. खिपड़ो सांगड़ से ताल्लुक है नोमी पायन का. You know, so he is from a remote area, which is great. I love representation. But the fact that, you know, he's gone on and taken 18 wickets in 2 test matches is amazing for his career. Bro, averaging less than 30 now. Yes. 29.7. He has played 16 test matches. आखिरी 2 में 18 विकेटें आई हैं और अब 16 में 58 है. That is quite a decent number. Like you said, he's averaging less than 30, which for a finger spinner is great, right? और उसके ऊपर यार 110 for 5 fifers. जब नोमी पायन चलते हैं ना तो फिर मैच जिताते हैं. And crucial knocks with the bat as well. ये contribution ना भूलो. यार वो 97 जिम्बाब्वे वाला याद है with the bat. फिर खड़े रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिजवान के साथ जब आपने वो मैच ड्रॉ किया था 196 वाला. इतने लोग ड्रॉप हुए, मेरे मुंह से ड्रॉप ही निकली जा रहा है. 196 वाला ड्रॉप. तो you know, very handy contribution. मैंने तो फर्स्ट इनिंग्स की बात भी कहा था कि ठीक है साजिद will steal all the limelight, but don't forget the efforts of नोमी पायन. मुझे लगता है दोनों की contribution was मतलब मैसिव, और इक्वल फुटिंग भी रखूंगा मैं. मतलब ऑब्वियसली वो सेकंड इनिंग्स वाला एंगल आ जाता है. इतनी उम्र हो गई है, जितनी भी 42-43 सही कह रहा हूँ ना, यही होते हैं 42-43 नहीं 43 ठीक था. तुझे भी नहीं पता. 42-43 years of age at least. 37-38 जाके खत्म हो जाती है मेरी. मुझे जनरली सारी आती है, बट खैर पॉइंट इज दैट दिस मैन इज एटलीस्ट 41-42, ठीक है, एंड ही हैज बेटर फंक्शनिंग ईयर्स देन मोहम्मद रिजवान. ठीक है, रिजवान को तो उसने एक सुनाई नहीं दी थी. नोमी पायन ने कहा यार रिव्यू लो. यार रिज का क्या सीन है? he doesn't like DRS. Honestly, we should have a DRS face-off between Mohammad Rizwan and Ollie Pope. They're both terrible at it. I would really be keen to see that who is worse. यार लोग बड़े फनी हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर रिजवान को व्हाइट बॉल का कैप्टन बना दें तो DRS पे क्या करेगा पाकिस्तान? Which is true. He doesn't believe in DRS, right? बट या वो वाली निक नोमी पायन को सुनाई दी, जो कि क्रॉली यार उस वक्त रनआउट भी मिस हो गया था सब कुछ, तो जरूरी था उसको आउट करना. नोमी पायन कर गए. क्रूशियल विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में भी थी. सलमान अली आगा का भी बड़ा उसमें रोल था उस रिव्यू लेने में ना. सो सलमान अली आगा ने ये बोला कि शान मसूद जो है वो बड़ा ट्रस्ट करता है मुझे विद दीज कॉल्स, एंड ही इज यूजुअली द वन हु सेज कि हाँ ले लो या ना लो, और फिर उसके बाद डिसीजन बनाता है. सो उसका बड़ा क्रूशियल रोल है यार उसके अंदर. सो सलमान अली की तो बड़ी बातें करनी है. अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए उसके ऊपर प्रॉपर he'll get proper air time, right? But you know, नोमी पायन और साजिद again super chuffed with their performances. और नोमी पायन तो आपको पता ही है कितने हमारे दिल के करीब हैं. Man, myth, पायन, science. Yeah. But yeah, I mean, what a guy, and we will continue to shower him with love on this podcast. Select भी होते तो मैं और साथी तो खुश तो गाने गा रहे थे नोमी पायन, नोमी पायन. और यार आप लोग क्या नोमी चाचू बनाए तो कितने चाचे बनाने? पायन है वो, पायन, ठीक है. मेक दिस वायरल. बट एनीवे मूविंग फॉरवर्ड यार, अच्छा एक और चीज सॉरी इन दोनों की. They bowled continuously throughout the third innings. Sorry, fourth innings. इन लोगों ने ही सिर्फ bowling कराई है. We don't really get to see that very frequently now. अब नहीं होता है. पहली innings में भी they bowled extremely long spells. यार मतलब आपके बाकी की bowling attack की बात की जाए तो बेचारा आमिर जमाल जो है, he was hobbling. उसको तो आप, you know, I think आपने undercooked ही खिलाया. He wasn't fully fit for this test match. Right? I hope he is for Pindi or whatever. And then also you used him at the wrong end. मैं नोट कर रहा था ends, और एक end जो था ना जो मेरी तरफ वाला था, जब when I'm behind the bowling arm, उस एंड पे ना पेसर की बॉल या सीमर की बॉल डाई डाउन कर रही थी, बाउंस बहुत लो था, उस पे उसको शुरू नहीं कराया. लाइक व्हाई गिव आमिर जमाल दैट एंड. वापस आया वो उस एंड पे फिर से बॉलिंग कराने, बट दैट वाज द लास्ट वी सॉ ऑफ हिम. वी नेवर बोल्ड अगेन एंड यू डिडंट नीड हिम एज सच. ठीक है, बाकी जाहिद महमूद व्हाट बोल्ड 6 overs in this game. So उसको भी मतलब आपने खिलाया तो ऐसा है नहीं. लाइक इफ यू वर गिविंग आउट प्लेयर रेटिंग्स वी वुडंट नो व्हाट टू गिव जाहिद. नथिंग, NA क्या NA ही देते ना, कि 6 ओवर कराए ठीक है व्हाटएवर. मे बी अगर आप टर्नर बनाते हो फिर से in Rawalpindi, if you manage that, perhaps Mehran Mumtaz can debut.
अगर आपकी वही स्ट्रेटजी है, वही वॉर प्लान है, तो फिर आप जाहिद की जगह मेहरान मुमताज ट्राई कर लो, मेरा ये ख्याल है। नहीं, मेरे लिहाज से एक पेसर ऐड करो, पेसर ऐड करो फॉर द रिवर्स। यार मैं तो कहता हूँ ले आओ वापस नसीम को यार। नहीं, नसीम नहीं आएगा। और है कौन? मोहम्मद अली है, मीर हमजा को मैं ना खिलाऊं। अच्छा, हाँ, आई लव मीर हमजा, लेकिन अगर रिवर्स पे आप कैपिटलाइज करना चाह रहे हो तो यार ही डिड रियली वेल इन रावलपिंडी लास्ट टाइम। वो खुरम शहजाद ले गया सारी लाइमलाइट, 6 for 26 जब किया था। हाँ, तब मीर हमजा बड़ा अच्छा कर रहा था, एंड उसकी अनलकी भी था, कैचेस ड्रॉप हो रहे थे और ये सब चीजें। आइडियल सिचुएशन में तो नसीम होता, अगर नसीम ना होता तो खुरम होता, खुरम नहीं है तो अब देखते हैं ना कितनी ड्राई सरफेस बनाते हैं, रिवर्स के लिए आपको ड्राई सरफेस चाहिए। ऑल्सो इस वाले ट्रैक पे ना रीयूज सरफेस के दोनों तरफ स्ट्रिप्स थी, They were pitches on both sides. It was sandwiched between those surfaces. तो उससे भी आप बॉल स्कफ अप करके रिवर्स ले सकते हो। और वो पूरी घास उतारी हुई थी ना, जिस तरह आकिब ने बोला था कि उसके ऊपर मारोगे तो रिवर्स। I think ये वॉर प्लान तो फिट है, रिवर्स आए गेम में, टर्निंग ट्रैक हो, बट इज इट like can you replicate it? That remains the question. तो खैर बॉलिंग की हमने सारी बात कर ही ली है. There's nothing much to talk about. Let's talk about Kamran Ghulam, 13th batter in the history of Pakistan cricket to score a debut in his test. Or first test. Debut in his first wow, test. Good. Wow. I really needed that sleep, I suppose. Time to talk about Kamran Ghulam. Wow. Debut test inning, scores 118, becomes the 13th batter from Pakistan to score 100 on test debut. और इसने तो पहली innings में ही कर दी है, ठीक है. And you know, there was so much to love, but just to build up a bit of context. 19 for 2 पे आप आए हो as the Babar Azam replacement, and you've played that really difficult phase under pressure, and then again when the ball was reversing, जब Port Sarkar reverse करते वो भी आपने survive ही किया है. There was heaps of pressure on him just because he was the guy that Babar, had sat down for. He was the replacement. और अवाम तुम्हें पता है हमारी बड़ी unforgiving है, खासतौर पे जो FC है, वो फजूल की hate भी दे रहे थे कामी जी को। हालांकि यार ये तो बंदा अपनी मेहनत पे पहुंचा है, उसने क्यों hate दे रहे? उसने बोले कि बाबर को बिठाओ, उसने बोला था बाबर को 50 ना करो। Exactly, 18 इनिंग्स के अंदर। तो कामरान गुलाम की इसमें कोई गलती नहीं है। आई थिंक ही वाज वेरी assured with his stroke play versus spin. really pleased with his spin game, ठीक है। 3 तरह की स्वीप्स देखी हमने। वो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हेल्प करता होगा उसे। या बट वी सॉ हिम रिवर्स, वी सॉ हिम स्लॉग स्वीप और कन्वेंशनल स्वीप भी थी, और एक कन्वेंशनल स्लॉग भी था। मारता कन्वेंशनली था, फिर उठा देता था पीछे से। I don't know if he has the paddle or not, but if he does, he'll go the full Duckett, because Duckett has all 4, right? I was really impressed. But again, just to kind of be complete, I think he is kind of dodgy versus pace. There were a few brain fades where he got lucky. He got dropped on 79, but none of that matters because of the context. हाँ, brain fade, strain fade पे तो मैं कोई comment करूँगी नहीं. पहली innings में होता है. The nerves get better of you. और यार उसका footwork भी exceptional था. Beautiful. Yeah. The way he took down spin, I was seriously impressed. I can see him being a very good test batter in Asian conditions. 100%. Because even these conditions suited him. Perfect. They were tailor-made for Kamran Ghulam to come and do his things. वो आया, उसने sweep मारी है, रिवर्स स्वीप पे भी मारी हैं, और उसने आकर 118 कर दी हैं आपको। एंड ठीक है, पेस के खिलाफ कुछ थोड़े मोमेंट्स थे जब मैं कहता क्या कर रहे हैं। बॉल भी यार मुश्किल थी, उस वक्त रिवर्स कर रही थी। अगले टेस्ट में देखते हैं ना कि किस तरह। और एंड ही डिड प्ले आउट 2 really difficult phases. 19 for 2 पे जब नया बॉल ब्रेक कर रहा था, बहुत मुश्किल थी बैटिंग, और फिर रिवर्स स्विंग जब कर रहे थे पॉट्स और कार्स तब भी, और स्टोक्स तब भी बड़ी मुश्किल थी बैटिंग। स्टोक्स ने क्या स्पेल करवाया था वो, डैम। I mean, won't get talked about. यार उसमें बस ये एक मैं बात करना चाहूंगा कि लेट द मैन प्ले. दिस इज नॉट लाइक द सेवियर ऑफ पाकिस्तान, और इसने सारे मसले नहीं हल कर देने पाकिस्तान क्रिकेट के। आराम से सुकून से उसको खेलने दें, ठीक है। अभी वो वाली चीज मत, मिसाया कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर से मत पड़ जाए कि बस एक नया बंदा आ गया अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। He goes on a run to score centuries in every match. Good. If he fails, do not ridicule him. Be patient. This is a man who's done his hard yards. He's really earned his stripes. Even though ज़्यादा डोमेस्टिक नहीं खेला यार, हम देख रहे थे मैं और साथ। Yeah, 2013, 11 साल पहले उसने डेब्यू किया और सिर्फ 60 फर्स्ट क्लास मैचेस। Exactly, that's nearly not enough. But 2020 वाला season, he became the highest run scorer in Qaid-e-Azam Trophy, if I'm not wrong. 2020, 2021, I think one of those. उसके बाद फिर 2023 he was really good, and 2024 तो अभी चल रहा है। And I mean recently भी यार बहुत रन्स कर रहा था, चैंपियंस कप में 200s किए। 2022 में भी he was fairly decent. वो डार्विन में बांग्लादेश के खिलाफ 100 मारा, फिर ये चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस दी, और सीजन परफॉर्मर तो था। यार अंडर 19 प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। और 2013 में ही अंडर 19 की एक इंग्लैंड के खिलाफ गेम खेल रहा था, इसमें he smacked 102 of 56.
That's insane. वो वाला कामरान गुलाम किधर है यार? Because this guy, I feel like Test cricket is his best format. इसको खिलाने now it's his best format. When he broke onto the scene, obviously ये 2013 में, उसके बाद I remember him playing for Islamabad United in the first PSL season. Islamabad picked him up, right? Didn't play a match, fielding करने आता था. Everyone considered him to be the next big T20 product. लेकिन I don't know what happened. ये अब जो उसके करीब है वही बताएगा. But he changed up his style and transformed his game into first class cricket. I mean, sure there are limitations to his game. वो पेस के खिलाफ मुझे साउथ लेवल डॉजी लग रहा था उस्ताद. I really worry for both of these guys in Senna. ठीक है? मसले. But I'm extremely chuffed for him. I'm so happy. मुझे एजाज ने from Pak Passion बड़ी जबरदस्त स्टोरी सुनाई. उसने कहा यार मैं 2017 में एक डेबू के अड्डे पे था. तो मुझे तब कामरान गुलाम नजर आया. इस्लामाबाद यूनाइटेड का किट बैग था. एंड लाइक यू सेड दे साइंड हिम बट ही डिडंट प्ले अगेन. वो वाला टाइम चल रहा था. एंड यू लुक एट दैट पिक्चर, ही पोस्टेड दैट पिक्चर एज वेल. तो बड़ा छोटा भी लग रहा है कामरान गुलाम. अभी अगर वो लिखी हुई 29 है एज, इवन इफ ही इज 31 32, तो तब तो और भी छोटा होगा ना. 7-8 साल पुरानी बात करें, 7 साल पुरानी बात. एंड एजाज आस्क्ड हिम कि यार खेलोगे पाकिस्तान कभी? तो कहते हैं मैं जरूर खेलूंगा. इस तरह की बात की इसने. तो तब से पता चल रहा है कि ये बंदा जो है बहुत मोटिवेटेड है एंड ही इज वेरी ड्रिवन. ही रियली वांट्स टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान. स्वीट सा आदमी है, शरीफ बंदा है. यू नो, प्रेशर में आया तो बस वही जेनेरिक सब जवाब दे रहा था सारी चीजों के. नहीं, I met the guy in 2022. अच्छा, हाँ, I met him अभी सीरीना में. I just said hello. हाँ, नहीं, हाथ साथ मिलाया था. मैंने इंटरव्यू किया था इसका और मोहम्मद हारिस का 2022 में. They were brilliant guys यार. आराम से यार have you checked out his forearms? मैं यही कहने लगा. Popeye bro. So एक तो veins pop out कर रहे होती हैं. खैर उसके बाद रूम में ले गए, उनके साथ गपशप की, इंटरव्यू किया. The audio got screwed up. लेकिन he was very assured के he will represent Pakistan one day. Clarity नजर आई उसके अंदर. और he was picking his battles wisely, barring those few shots versus pace जिसमें निकल के मारा था. वो रिजवान ने भी इस तरह की चीजें की हैं. खैर, but yeah, I mean, I have my reservations with respect to Kamran away from home, especially in Senna. But this is not a moment to be talking about this. अभी आप सब सेलिब्रेट करें इस इनिंग्स को, खुल के सेलिब्रेट करें. बहुत बड़ी विन है ये. होपफुली जो मुझे थोड़ी से है ना, उससे मसला यही, पेस को वो सही जज नहीं कर सकता. होपफुली ना हो मसला. और यार इतनी मुश्किल विकेट पक्की कर ले अपनी जगह. इतनी मुश्किल विकेट पे ही इज द टॉप स्कोरर. ठीक है, 118 और पे 26 भी बुरा नहीं था यार. वो अच्छा 26 था कामरान गुलाम का. मेरी तरफ से तो यू नो शानदार परफॉर्मेंस. आई एम so elated for him, right? दिली खुशी है मुझे. और मैं चाहता हूं कि यार और भी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इस तरह रिवॉर्ड हो. न्यू दिल्ली. Yeah, and I mean, you know, ये भी कहना आप दुरुस्त नहीं कि बस अब वो आ गया ना, अब सारे मतलब मसले हल हो गए. Don't fall into the savior complex. Don't make a messiah out of another person. But do celebrate it. खुल के सेलिब्रेट करें. कामी जी ने मतलब याशियां करा दी हैं. याशियां. मजा. या और मतलब यार इतनी आपने मेहनत की हो ना, आपकी पूरी फैमिली भी बैठी हुई थी. He's got like 16 siblings or 15 siblings. Damn! Yeah, he's on number 11 or 12, I can't remember. तो यार क्रिकेट टीम ज्यादा ही, बल्कि पूरा स्क्वाड. बल्कि एक बंदे को बैठना पड़ेगा क्योंकि 15 लोगों का स्क्वाड होता है. ड्राइविंग रिजर्व. या मुझे बहुत मजा आया उसकी इनिंग्स देखने का, खास तौर पे उसकी स्वीप्स देखने का. आई थिंक हिज स्पिन गेम यू नो वाज द हॉलमार्क ऑफ दैट इनिंग्स. अनडाउटेडली यू नो. और फुटवर्क बहुत अच्छा था स्पिन के खिलाफ. इतनी मुश्किल सरफेस पे. ठीक है, ही गॉट द बेस्ट ऑफ द कंडीशंस टू बैट पहली इनिंग्स, बट स्टिल यू नो एंड श्योर यू कैन से ही गॉट ड्रॉप्ड और व्हाटएवर, बट ही कैश्ड इन. 19 for 2. Playing your debut match, replacing the biggest batting name in this lineup. When an FC is after you as well. ये भी हो रहा था. और The context was amazing. A classic Pakistan cricket story. बड़े हमने वैसे वो देखे हैं लोग जो डेब्यू पे आके 100 करते हैं. Hopefully Kamran Ghulam does not become another Umar Akmal. यही बोल सकते हैं. और वो बनेगा भी नहीं. और यासिर हमीद मतलब वो died down ना उसका. अली नकवी. वही तो एग्जैक्टली who's Ali Naqvi is the question, right? पर मेहनती लड़का लगता है मुझे पसंद है. He looks to be a very gritty character as well. और यार वो प्रेशर अच्छा रिलीज कर रहा है. मैं एक और प्लेयर का नाम याद आ गया. Hopefully he's not the next फवाद आलम as well. उसका तो ज्यादती की ना यार. वो उसकी गलती नहीं है. ठीक है. बट कामी जी, वही मैं जिस तरह पहले भी बोला, earned his stripes. और यार आई एम डेफिनेटली फैन. आई थिंक कि यू नो in hindsight he was even a better pick than Babar in these conditions because he has a great spin game. In hindsight. Hindsight में तो आप बड़ी बातें कर सकते हो. I disagree with the mid-series sacking, but I think कि यार जो भी जैसा भी हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए चल गया. And while this could be a one-off, let's hope it's not. And हमारी तो पूरी दुआएं हैं. Illustrious career हो कामरान गुलाम का टेस्ट क्रिकेट में. 100%. He even proves us wrong on the pace thing.
जाकर पेस को चौके मारे. I want that in the next game. Absolutely. And just really thrilled for people who come under these sort of circumstances and perform in general. वो story बड़ी कमाल है. और वैसे ही जिस तरह के वो performances जिस तरह grind out किया उसने टेस्ट क्रिकेट में. Yes. Always coming in the squad, then being dropped, not playing a match. Exactly. That must really break you. आप सेलेक्ट होते हो फिर आप बिला वजह ड्रॉप हो जाते हो. मगर इस दफा गिलेस्पी ने आइडेंटिफाई किया हुआ था और उसने इनएविटेबली तो कहीं ना कहीं खेलना था. वो उसको मौका इन अजीबो गरीब सर्कमस्टेंसेस में मिल गया एंड ही कैश्ड इन. ही मेड द एब्सोल्यूट मोस्ट ऑफ इट एंड कूडोस टू यू कामरान गुलाम. लॉन्ग मे दिस कंटिन्यू एंड जितने भी आपके करियर के साल रह गए हमारी तो पूरी दुआ है कि आप और भी अच्छा करो यार. यू एब्सोल्युटली किल इट. ऑलराइट, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान's बैटिंग. There were a few failures. उनकी जरा बात कर ले. Abdullah Shafiq, single digit scores was it? Yeah. Shan Masood really poor dismissal in the first innings. 3 पे चला गया था. दूसरी innings में अच्छा लग रहा था. क्या 20 तक पहुंच गया होगा? शान मसूद अच्छा कितना का बनाया है? शान मसूद अच्छा ही लगता है फिर जब तक वो आउट नहीं होता. Yeah. So I mean I liked the intent in the second innings. एक सेकंड में राम अपडेट. क्या? इंडिया का स्कोर. Oh damn, how did that happen? I don't know. 462 for 9 कैसे हुए ये लोग? अभी मेरे साथ लिटरली जब हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने आए तो अभी भी पंत आउट हुआ था जो कि उसने छत पे मार दी थी चन्ना स्वामी की गेंद. एनीवे सॉरी क्या कर रहा है यार? शान मसूद का मुझे शान मसूद खोलने लगा था तो पहली चीज ये खुली है. मैं क्या करूं? सही है ठीक है. इसलिए हमारे शो लंबे होते हैं और कोई वजह नहीं है. 11 not even 20s, right? So that was really poor, right? From both him and Abdullah, and I would say Saud also failed. Saud ने क्या 2-4 रन पहली इनिंग से बनाए हैं. फिर वो ड्रॉप होने के बाद भी 31 नहीं कर सका. रियली पुअर डिसमिसल जब वो स्वीप पे आउट हुए. सो मेरी बुक्स में तो खैर रिजवान 50-50. नहीं रिजवान ठीक था. 50-50. आई थिंक रिजवान प्लेड सम. ही वाज वेरी जिटरी इन द फर्स्ट इनिंग्स. नो डाउट. आप जब उसको बैटिंग करते हुए देख रहे थे तो डर ही लग रहा था मगर ही ईक्ड आउट 41 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स में भी 22 इस तरह कुछ कर गया था जो कि उस टाइम पे तो बैटिंग करना वैसे ही मुश्किल था. बट ही वाज ट्राइंग टू रियली अटैक द सीमर्स. I don't know if that was the right ploy or not, but समझ नहीं आती मुझे रिस्क की. Yeah, if he's averaging 30 odd in this test match, इस तरह की surface पे, तो that's fine by me. I would not call it a failure. मैंने इसीलिए बोला है ना, right in the middle. मगर बैटिंग फेलियर्स में अब्दुल्ला undoubtedly आएगा. ठीक है, played down the wrong line versus Jack Leach. अब्दुल्ला और शान मसूद and Saud Shakil definitely. और शान मसूद तो चलो वही हम बार बार यही कहते हैं कि यार मतलब you really need those scores. अब अभी आपने 151 मारे तो back it up, right? We need more consistent performances. क्या हमें 4 साल और वेट करना पड़ेगा? Hopefully not, right? 4 साल बाद सेंचुरी आई थी. But चलो इस वक्त तो वो कैप्टन है. He'll be on a high and he'll be motivated to perform in the next one. अब्दुल्ला पे बहुत प्रेशर है. बहुत ज़्यादा प्रेशर. Especially अगर आपने साउथ अफ्रीका में बाबर को वापस लाना और कामरान को ड्रॉप नहीं करना तो फिर एक ओपनर जाएगा, शान ओपन जाएगा और फिर बाबर 3 पे आएगा और कोई तरीका भी नहीं है. यही है ना. तो फिर अब्दुल्ला he's at this point where the standard deviation needs to stop. You can't just be feast or famine. ठीक है, आप या तो सिंगल डिजिट करते हो या 15-20 कर आउट हो जाते हो या तो आप सीधा 100 ठोकते हो और कभी कभार लंबे 100 ठोक जाते हो. It's been that sort of a career and he really needs to kind of introspect and fix this because I do trust him. I like Abdullah. I have high hopes for Abdullah. I love Abdullah. उसके 2-3 वो टेक्निकल इश्यूज की बात करते हैं जो भी कमेंटेटर्स एंड आई डू एग्री. एक तो उसका वो जो एंगल्ड बैट आता है ना यार, वो जो आता है ना उसका यूं उन्होंने दिखाया भी था. यहाँ से यूं आता है पूरा ऊपर से इस नीचे आता है, एक सर्कुलर सा मोशन आता है. वहां पे वो मिली सेकेंड्स वाला जो डिफरेंस आता है ना बैट और पैड के बीच में जो गैप क्रिएट हो जाता है. वो गैप ही गेट्स बोल्ड थ्रू द गेट देन. और वो जो रूट के साथ कंपैरिजन करते हैं जो रूट का बिल्कुल सीधा आता है. तो ये फर्क है ना. फिर दिस इज समथिंग दैट अब्दुल्ला कैन रियली लुक अपॉन एंड फिक्स दिस, रेक्टिफाई दिस बिकॉज़ वी डू थिंक कि ही इज स्टिल अ वेरी वेरी सॉलिड टैलेंट. वेरी सॉलिड टैलेंट. आई बिलीव कि वो हमारा टेस्ट ओपनर खेलेगा 10-1 साल और. इसका स्टॉक अगर अच्छी तरीके से मैच्योर हो गया ना तो ये बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. ही शोन अस साइंस व्हेन ही गोस बिग, ही डज गो बिग. ठीक है, तो अब्दुल्ला आई वुड स्टिल प्ले हिम इन द थर्ड टेस्ट मैच और आई रियली होप दैट ही स्कोर्स सम रन्स बिकॉज़ दिस वाज अ वेरी बैड टेस्ट. शान के लिए भी बुरा था मगर आई गेस अभी क्योंकि शान ने फाइनली वो 100 मार दिया था. अगर शान मसूद कैप्टन ना होता मैं बिठा देता. Yeah, because 150 से काफी पहले बिठा देता. ये भी बात तुम्हारी ठीक है. And he's averaging below 30 once again. अब I think 29.4 इस तरह कुछ है. But then again, because Pakistan is on a high, maybe he benefits from that, right? क्योंकि 7 टेस्ट मैचेस में 6 हारा हुआ था और पहला जीता है. वो भी रिकॉर्ड है by the way. No one has gone this many test matches as captain without accumulating so many losses. Saud was the biggest disappointment.
because this surface was tailor made for Saud. जो हम कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं, Saud का भी वही हिसाब था. Exactly. He should have been the batter versus spin and he failed both times. एक दफा पेस के खिलाफ आउट हो गया था, पीछे से निक कर दी थी, और दूसरी दफा स्पिन पे आप LBW हो गए हो जब आपको लाइफ भी मिली हुई है. ठीक है, आपने 31 किया, and those are important 31 runs in the grand context of the game because of course every run mattered, but it's just a disappointment because I expected so much more of him. हाँ ना, and I love Saud Shakil. I think कि एटलीस्ट इन एशियन कंडीशंस वो बहुत ज़्यादा यूजफुल बैटर हो सकता है आपके लिए, और करता आया है वो. ही इज प्रूवन दैट इन एशिया. लेकिन दीज कंडीशंस जहाँ पे सारे उसकी दे रेव अबाउट हिज स्पिन गेम, दिस वाज हिज टू exactly take it, right? He missed out big time. Big time. He scored as many runs as Babar right from the last test. इसी तरह yes, तो थोड़े कम. But Saud that was a flat deck. मैं जितने लोगों से बात कर रहा था ना, ठीक है, और and yeah, you're right, that was a flat deck. This was still a testing track, right? मगर सबका यही मानना था कि Saud is the guy for this service. He has the experience more than Kamran, और वो स्पिन अच्छी खेलता है, but he failed, so that is disappointing. और यार it's important to talk about these things because जीत के बाद ना हम हमेशा we paper over the cracks, but I feel the cracks need to be identified as well, and these are cracks which are as big as those cracks in the Multan surface by day 9. और Ian Ward से मेरी बात हो रही थी, he was like I can put my entire fingers in it, like मैं चारों की चार उंगलियां डाल सकता हूँ उसके बीच में. ठीक है, वो वार्डी आता था वहाँ पे सुट्टे शुट्टे मारने आता था. काफी spoke to Athers as well, and it was nice, you know, kind of spending some time with all the English guys as well. अभी बल्कि वो आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्रिकेट का भी शायद सीन कर लें हम. Atherton and Nasir Hussain को ले वो तो नहीं आएंगे यार, उनकी obviously दूसरी कमिटमेंट्स होंगी. उन्हें पता है कि यहाँ पे क्रिकेट कैसे होती है, होंगे वो इंग्लैंड में प्ले. मजाक कर. नहीं वो करते कभी बार टेप बॉल, मगर वो फिर स्काई की पूरी टीम आती है. बॉक्स क्रिकेट में किस तरह खेलते हैं वो तो पता ना, they've done those segments before as well. खैर तुमने रिजवान की बात की थी, तो ठीक है, he got lucky as well. He nicked one on 6, वो अपील ही नहीं हुई. तो वो लक कह सकते हो आप, मगर ultimately if he's averaged 30 across both innings, I would call that I would give that a passing grade. बैटिंग छोड़ो, रिजवान की जो कीपिंग कर दी है ना रिजवान ने, आई फील वो उधर ही पूरे कर गया था अपने. ही वाज ब्रिलियंट बिहाइंड stumpings. He was brilliant behind amazing stumpings, right? Didn't miss a single opportunity. Was chirpy and I like that. थोड़ा under their skin भी जाना चाहिए opposition. यार देखा तुमने डिफरेंस when you're doing better on the cricket field, सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो फिर बाहर निकल के आते हैं. There was some discourse around how maybe Rizwan is the captain over here because साजिद उसका प्लेयर था KP में, और बार-बार उससे बातें कर रहा था. And of course he's a senior player. Just by the way, साजिद ने भी जब भी शान मसूद का नाम लिया ना, मैंने जितने भी इंटरव्यू सुने उसने साथ रिजवान का लिया. शान भाई और रिजवान भाई मुझे यही कह रहे थे. यार रिजवान सीनियर मेंबर तो है ना टीम का, तो obviously his say matters, and I'm sure that Shan wants that from him. और obviously कीपर की से हमेशा होती है यार. शान खुद चाहता होगा कि वो भी स्टेप अप करे यहाँ पे. He is going to like really aid from Rizwan's help. Rizwan की tactical nous तो है, तो मुझे देखकर अच्छा लगा कि टीम ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया in the midst of all this chaos. Finally Pakistan acted like Pakistan, right? कि chaos होगी हम तब thrive कर जाएंगे. Loki है ये, they're the Loki of cricket. Loki क्या कहते हैं वो, master of chaos है, god of chaos, I don't even know. कौन? Loki. I don't give a shit, Thor bro. वाला मुझे Loki. शायद गालियां पड़े. I don't watch that shit, bro. नहीं तो हर किसी की अपनी चॉइस है. I'm a Marvel नहीं buff. Marvel buff भी नहीं, मैं MCU buff. मैं जिसको भी बताता हूँ तुम ये नहीं देखते. That was Game of Thrones for the longest time. मैं ही कह रहा था कि तुम Game of Thrones नहीं देखते. फिर वो एंड इस तरह हुआ कि अब मैं कहता हूँ यार पता है, good, do not waste your time. Maybe the journey was fun, the ending was not. It was rushed. Again, not a पॉडकास्ट अबाउट गेम ऑफ थ्रोन्स. सो या ये तो सारे वो फ्रिंज बैटर्स तो नहीं कह सकते. क्या कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया मेरा. Players who did not perform. And Rizwan को तो हमने पासिंग ग्रेड दे ही दी है. Look, ultimately Pakistan did score their third highest total फिर से कर देना ये. Look, ultimately Pakistan did score their highest total in the third innings in 2024. मेरे ख्याल से यार, and you might disagree with me over here, but even more valuable than Kami G's 100 were Salman Ali Agha's runs. 31 की फर्स्ट इनिंग्स में वो थर्ड मैन पे चौके दे ही जा रहा था. आउट भी उसी तरह हुआ, ठीक है, नो डाउट. एंड क्रेडिट टू स्टोक्स फॉर स्टिकिंग विद दैट प्लान. यार उसका जो 63 था ना दूसरी इनिंग्स में इन टेस्टिंग कंडीशंस, और ये बंदा कंसिस्टेंटली स्कोर करता जा रहा है बस पाकिस्तान के लिए. वी सॉ हिज नंबर्स मैन, ही इज एवरेजिंग 58 विद द बैट इन टेस्ट क्रिकेट सिंस द स्टार्ट ऑफ 2023. एंड जुलाई 2023 से ही इज एवरेजिंग 61.9. दैट्स क्रेजी. जुलाई 2023 इज दैट श्रीलंका सीरीज. 61 point what? 9.
That's insane. Yeah. Overall average भी 47.6 हो गई है और पिछले 2 सालों में पिछले 2 सालों में 63 और 54 की टेस्ट एवरेज है. His rise has been immaculate. He was dropped twice, no doubt, but he made England pay. और यार मतलब जिस स्मार्ट तरीके से अटैक कर रहा है ना सलमान अली आगा, he is literally putting pressure on the opposition. He is scoring invaluable runs with the tail. He excels at batting with the tail. And he is consistent. हर मैच में रन से दे रहा है आपको. मतलब अभी जब उसकी 50 नहीं हुई थी पहली इनिंग्स में, कहते हो यार सलमान की 50 नहीं हुई. यार मैं अभी fairly recently तक हम इसे बोलते हैं he's a great utility player. I think he's more than that. Much more than that. He is much more than a bits and pieces cricketer by now. I would say he's a proper batting all-rounder. Yeah. सलमान अली आगा खुद बोल रहा था कि शुरू में जब मैं ये रोल करता था तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं था. आई वांटेड टू बैट हायर अप द ऑर्डर, बट नाउ आई हैव मेड दिस रोल माय ओन एंड आई एंजॉय डूइंग दिस. यार ही इज अ फिनोमिनल स्लिप फील्डर एज वेल. हां, ही इज ग्रेट. ठीक है, वो देखा था कितने प्यार से उसने कैच ले लिया था, उसी तरह खड़ा रहा था. देयर इज सो मच टू लव अबाउट हिम. ये अगेन वन ऑफ दोस क्रिकेटर्स जिसने हार्ड यार्ड्स किए हैं डोमेस्टिक में. ही इज अर्नड हिज स्ट्राइप्स एंड बॉय इज ही मेकिंग द मोस्ट ऑफ हिज टेस्ट करियर. मतलब यार फॉर हिम to be averaging this high and giving Pakistan these consistent scores in the lower order में वो जहां पे आप 250 एम कर रहे होते हो वो उठा के 290 कर देते हैं ना, वही डिफरेंस ऑपोजिशन पे भी पड़ जाता है. यार सलमान ने रन्स ना किए होते ना ये और इंग्लैंड ने 220-30 चेस करना होता, शायद वो बैटिंग भी फर्क तरीके से करते, शायद ये चेस हो भी जाता, मगर उसने जो इनिंग्स खेली है वो डिफरेंशियल बहुत ज्यादा हो गया. यार आई फील लाइक those 63 runs are far more valuable than Kamran's 100. I know के थोड़ा ही फर्क है, मगर कंडीशन ज्यादा टेस्टिंग थी और प्रेशर में बहुत था पाकिस्तान. They could have crumbled. तो कोलैस्प आ गया था. आई एम नॉट सेइंग कि कामरान गुलाम का वैल्यूबल नहीं था 100, बहुत वैल्यूबल था. आई एम सेइंग कि सलमान अली आगा ने जो कंट्रीब्यूशन दी थी इस टेस्ट मैच में वो तो कमाल ही थी. बोथ इनिंग्स यार, पिछली में भी उसने 31 किए. इनफैक्ट इफ यू लुक एट पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग्स, रिजवान, सलमान, आमिर जमाल एंड नोमी पायन, दे कंट्रीब्यूटेड. हां, नोमी पायन, इन चारों ने, रिजवान, सलमान, जमाल और नोमी पायन ने 144 runs contribute किए 366 में. Those are very valuable runs. So a lot went right for Pakistan. Contributions came from everywhere. Very few people failed. Zahid तो खास मौका ही नहीं मिला. And even Saim Ayub had his best test ever. This was Saim Ayub's best test ever. I mean, this is his highest score, 77 जो उसने किया. दोनों innings उसने बहुत अच्छी. 77 and 22 किए ना उसने. ठीक है, he's actually scored more runs than Salman Ali Agha. एक तरह से देखो तो. ठीक है, 77 उसने best conditions for batting में किए हैं, but it was a patient knock. It was a patient knock. Yes. इतना mature knock. Yes. Just obviously 19 for 2 down थे, and I expected कि हम 20 for 3 होंगे. Saim Ayub would throw his wicket away, जो उसका अभी तक टेस्ट में हमने पैटर्न देखा है. But he didn't. Mature innings. No rash shots like that. Obviously attacked in between, but वो पक्के जो उसके शॉट थे ना, सिर्फ उसने वही मारे. He know that was in his wheelhouse and he has to go for those. Recognition of bad ball has gotten better. वो ये कहता है ना, साइम का माइंडसेट ये कि बैड बॉल छोड़नी नहीं है. ठीक है, बहुत अच्छा नॉक था. दैट 77 इज अंडररेटेड. आउट भी वो यार स्टोक्स ने किया उसे एक तरह से. दैट वाज अ ग्रेट फील्डिंग पोजीशन. वो बिल्कुल मुंह पे इसका फील्डर रख दिया. स्टोक्स की फील्डिंग पोजीशन, वो विकेट भाई बेन स्टोक्स की है. दूसरी इनिंग्स में भी 22 की है. आई वाज रियली प्लीज्ड विद साइम. मुझे पहली दफा ग्रोथ नजर आई है उसके अंदर एज अ टेस्ट बैटर. ही वाज वेरी पेशेंट एंड या आई लव्ड इट. यू नो, आई थिंक कि कामरान गुलाम, सलमान अली आगा और साइम अयूब वर brilliant amongst the top 4 batters in this game. आखिरी तुम्हें पता कौन है. Yeah, but very impressed. I think it was 366 करना first innings में बहुत valuable था. There were already too many runs on a track which was deteriorating, right? Yeah. और मतलब मजा आया यार. पाकिस्तान की बैटिंग देखने का ही मजा आया है क्योंकि इन लोगों ने काफी फाइट दिखाई है. और नोमी पायन और साजिद के रन्स मत भूलो. बहुत crucial contribution. A lot of these 30s and 40s and 20s really helped Pakistan. आमिर जमाल की भी first innings में contribution थी. बिल्कुल. The only player who did not contribute was unfortunately Zahid Mahmood, क्योंकि उसके लिए कोई रोल ही नहीं था आपके लिए. But this win is built on 4, 5, 6 performances by Pakistani. यार if you have to count तो obviously दोनों स्पिनर साजिद और नोमी पायन, उसके बाद फिर कामरान गुलाम, सलमान अली आगा and Saim Ayub. These 5 people effectively won you this test match because they performed better than most players across both teams, right? And congratulations to Pakistan. Again, पहले हम pros and cons discuss कर रहे थे of the sackings. Cons तो यही थे कि मिड सीरीज में आप करो ड्रॉप तो बहुत तहलका मच जाता है. प्रो ये यार इस सबका कि चलो अब आपको पता है कि आप उनके बगैर जीत सकते हो. एंड दिस वुड बी वेरी स्पिरिट लिफ्टिंग फॉर पाकिस्तान कंटिंजेंट. यार चलो, वी वॉन अ टेस्ट मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट, वी कैन बीट देम. इसी एटीट्यूड के साथ अगर वो जाएं नेक्स्ट टेस्ट मैच में तो आई
मैं शायद जीत भी जाएंगे। I mean conditions will matter. शायद जीत भी I feel like green top पे इंग्लैंड ही फेवरेट है। पाकिस्तान है मोमेंटम के साथ चलने वाली कोई टीम। पता नहीं वैसे, हाँ मोमेंटम के साथ तो चलते हैं, इनको बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ग्रीन टॉप आ गई, ये बॉलर्स पागल हो गए। if they are somehow able to manage a track in Pindi which turns a lot, I feel Pakistan can win this provided they win the toss. There are a lot of ifs over here, right? Anyway, जानीस पे आ जाओ यार। आप हमारे जानी बन सकते हैं पॉडकास्ट के, जिससे होगा ये कि आप एक डिस्कॉर्ड चैनल में आ जाएंगे, जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, जहाँ पे आप बेराम और मेरे से बात कर सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे जानीज हमारे वेरी लर्नड कम्युनिटी जिसके साथ हम बात कर सकते हैं। So educated, so learned, बहुत एक एकेडमिक फील है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जिस तरह बोला है तुमने। अच्छा, उसके जानी बनने के 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट इज पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से बन सकते हैं। उसके अलावा आप इजी पैसा के थ्रू बन सकते हैं। 0319360255 इज द नंबर। अगर वो नहीं है तो आप मुझे या ProSports को इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे DM कर दें। मुझे ना करना, साथ तो करना। हाँ, मैं वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दूंगा। अगर वो भी नहीं है, बहराम इनके पास तो ये जिंदगी में करने क्या आए हैं। अगर तो ऑनलाइन बैंकिंग भी नहीं है यार, इफ यू लिटरली लिविंग अंडर अ रॉक, तो मैं और साथ जो है ना, हम लोग रहते हैं इस्लामाबाद में, और हमारा दफ्तर है इधर, स्टूडियोज वगैरह सब E11 मरकज में, E11-3 में। आए हमारे मुंह पे मारे 1500 रुपए, हम आपको बना देंगे 1 महीने के लिए जानी। देयर आर अदर वेज एज वेल, यू कैन बाय अस एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी, नॉट अ नॉक ऑफ, इट हैज टू बी ऑथेंटिक। और यार पाकिस्तान की मत देना, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत आराम से मिल जाती है। तो कोई भी और स्पोर्ट हो, कोई भी और टीम हो, कोई डोमेस्टिक की टीम हो, ऑथेंटिक हो, will make you a Jani for 6 months. That's the deal. And I really, really encourage you guys to become a Jani of the podcast. देखिए, हम आपका cricket watching और sport watching experience enrich करना चाहते हैं via the podcast and that server, right? Discord वाला. We want you to come and enrich ours because we are students of sport. We are not know-it-alls. और हम चाहते हैं कि आप भी हमें आकर challenge करें, कोई मजे की गुफ्तगू हो, interesting debates हो, intelligent cricket discourse हो. बहुत ज़्यादा जो कि होती है वहाँ. Exactly, वहाँ पे होती है. That's what we're trying to promote over here. Of course, you guys probably know by now कि Saad and I are on a mission to change the landscape of sports coverage in Pakistan. हम ये sensationalism और मसालादार खबरों से दूर जाना चाह रहे हैं. हम वो intelligent cricket discourse की दुनिया शुरू करना चाह रहे हैं, और ऑलरेडी वीव हैड सो मच प्रॉमिस, यू नो, एग्जिस्टिंग जानीज, उनका इतना प्यार भी मिलता है, और वो इतनी इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस भी करते हैं. इट्स रियली अ फन प्लेस टू बी, वेरी वेरी एकेडमिक. हाँ, दे रेज क्वेश्चंस जो कि नॉर्मल जो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं ना अपनी क्लोज सर्कल्स में, उस तरह का. सो इट्स बेसिकली फन स्टफ. और ये नहीं है कि वो सिर्फ हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, वो आपस में डिस्कशंस कर रहे होते हैं, हम उनसे डिस्कशन कर रहे होते हैं. जिस तरह आज कल किसी ने बोला हुआ था यार इस बात एक बारे में जरूर बात करना, तो आई लाइक यार इन्फो दो इसकी बात, फिर मुझे बताओ ना कि किसकी बात करनी है. एंड यू नो इट्स अ कम्युनिटी एट दिस पॉइंट, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कम्युनिटी बिल्डिंग. और यार मतलब एक और चीज जो हम यहाँ करते हैं, वी डोंट टॉलरेट एनी डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म और अब्यूज. इफ यू से एफ यू, मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स आर आउट एज वेल. अगर आप कोई गाली देते हो, एफ यू कहते हो क्या किसी प्लेयर को या किसी बंदे को सर्वर में, आप बाहर हो, बट यू कैन जेनेरिकली स्वेयर व्हाट द एफ, व्हाट एन एफिंग गोल, स्टफ लाइक दैट इज फाइन. दूसरा यार कोई भी आप इस तरह की रेसिस्ट बात करोगे ना, यू इंडियंस, यू पाकिस्तानीज, यू साउथ अफ्रीकन्स, आप बाहर हो. जीरो टॉलरेंस फॉर दैट काइंड ऑफ क्रैप. सो प्लीज बिकम अ जानी ऑफ आवर पॉडकास्ट. यार ये पैसे मेरी और साथ की जेब में नहीं जाते, दे गो टुवर्ड्स मेकिंग दिस पॉडकास्ट फाइनेंशियली फीजिबल, बिकॉज इफ दिस पॉडकास्ट इज अ फाइनेंशियल सक्सेस, वी कैन ब्रिंग इवन मोर ग्रेड ए कंटेंट टू योर स्क्रीन्स फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स एज वेल. और यार गलतियां हमसे होंगी, विल बी द फर्स्ट टू कम ओवर हियर एंड टेक ओनरशिप. आप अकाउंटेबल रखो, हम ओनरशिप लेंगे. एक प्रॉमिस आपको ये कि कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे हम लोग प्रेपरेशन में और होमवर्क में. वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. सो कम and become a part of this journey. Become a Jani. Yeah, become a Jani. और हमारे साथ you know narratives बदलें, क्योंकि it's a high time we move away from all of that crap in Pakistan media. जानी नहीं बनना तो यानी भी बन सकते हैं. ये यानी हो गए आप. कहाँ हो गए आप यानी? हानी तो आप स्पेन में हो गए, और यानी हो गया आप लैटिन अमेरिका में, I think. Probably, yeah. Something like that. आ जाए हम वापस. आ जाते हैं यार. इंग्लैंड की बात कर लो यार. पाकिस्तान की बहुत बात कर ली, इंग्लैंड की ऑब्वियसली थोड़ी बात करना यार जरूरी है. सबसे पहले तो दे मेड सम चेंजेस. मैथ्यू पॉट्स केम इन फॉर एटकिंसन एंड बेन स्टोक्स ऑब्वियसली केम बैक आफ्टर इंजरी, रिप्लेस्ड. आज इसे कुछ हुआ यार, मैं लिटरली ट्रैवल कर आ रहा हूं. सो बेन स्टोक्स रिप्लेस्ड वोक्स, व्हिच मेक्स सेंस. एटकिंसन और पॉट्स भी ठीक था. यू डोंट वांट टू रन योर बॉलर्स टू द ग्राउंड. आई एम फाइन विद दैट. एंड यू नो, I think the biggest reason why England lost this test match was all of those lapses in the field. And their batting. ठीक है, बैटिंग पे आएंगे, मगर lapses in the field यार इतने ज्यादा थे. Look, अक्सर हम देखते हैं क्रिकेट में the team that makes more mistakes loses.
बट अगर आप एक तरफ पाकिस्तान की मिस्टेक्स देखो तो एक वो रन आउट फंबल था साजिद का, ठीक है, और एक वो सलमान अली आगा ना स्लिप्स में था, रिवर्स हुई है और वो हट गया था, वो कैच नहीं हो सका। इन दोनों के अलावा तो कोई लैप्स इन द फील्ड था ही नहीं पाकिस्तान का। दे वर अनमिस्टेकेबल ऑलमोस्ट। Brilliant. Happens every now and then. They're a weird team like that, right? But England की गलतियां अगर मैं आपको गिनवाने को आऊं, they made so many mistakes, like far more than Pakistan. एक तो सलमान अली आगा को 2 दफा ड्रॉप किया आपने। एक ही ओवर में ब्राइडन कार्स पे तरस आ रहा था मुझे। पहले वो जेमी स्मिथ ने डॉली ड्रॉप की है, एब्सोल्यूट सिटर, और फिर जो रूट को भी स्लिप्स पे लेना चाहिए था, वो भी डॉली था। दोनों आसान कैच आपने सलमान की आउट ऑफ ऑल पीपल छोड़ दिए। 2 मिस्टेक्स यार, वो 297 की जगह आपको टारगेट मिलता ना 237। मैं आपको बता रहा हूँ ये मैच फर्क होना था। बहुत ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस मिल गई थी। इंग्लैंड माइट हैव प्लेड अ बिट डिफरेंटली एज वेल, अप्रोच दैट इनिंग्स डिफरेंटली। अ लॉट ऑफ देम गॉट आउट हिटिंग बिग 6 शॉट्स, राइट? नोमी पायन को बहुत अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और आउट हो रहे थे। दैट इज इंग्लैंड, बट जब the score isn't too much, maybe they would have gone about it differently. I don't think so. या शायद उनको एक 10 ओवर स्पेल से बहुत ज्यादा बड़ी किक मिल जाती है अगर वो एक 70 आउट ठोक देते उसके अंदर। हाँ, लेकिन इंग्लैंड फिर भी अपना I see where you're coming from, of course. उनका एक ही तरीका है। And these were the perfect kryptonite sort of conditions for baseball. कि वो चौथी बैटिंग कर रहे हो एक ऐसे ट्रैक पे जहाँ पे टर्न करेंगे, तो उस हिसाब से तो स्ट्रेटजी फिट थी, ऑब्वियसली टॉस डिपेंडेंट बट फिट थी। खैर, सलमान के जो 2 ड्रॉप थे व्हिच आर इनएक्सक्यूजेबल, ठीक है, एक तो वो क्योंकि सलमान के थे और एक तो जिस तरह की वो सिटर्स छोड़े हैं। जेमी स्मिथ हैज बीन हैविंग एन इंटरेस्टिंग सीरीज बिहाइंड द स्टंप्स। जिस टाइम पे वो छोड़े, दैट वाज क्रूशियल एज वेल, बहुत क्रूशियल था। जिस तरह की ब्राइडन कार्स उस वक्त बॉलिंग कर रहा था, ब्रिलियंट स्पेल्स थ्रू आउट द गेम, उसकी करेंगे बात अब। और उस टाइम पे बेचारे बिल्कुल ही डिफ्लेट हो गया यार पहले भी मैच में से स्टंपिंग मिस की थी और इस मैच में इसने बिल्कुल ही डॉली कैच छोड़ दिया यार। एब्सोल्यूट सिटर हम पकड़ लेते, ठीक है। सो ही इज नॉट ए रेगुलर कीपर फॉर सरी एंड दिस विल कम अप इफ ही कंटिन्यूज टू मेस अप बिहाइंड द स्टंप्स, राइट? बट अभी टू सून। अभी 2 मैच हुए हैं यार, पहली दफा एशिया में कीप कर रहा है। आई एम गोना गिव हिम सम लीवे। 2 मिस्टेक्स हो गई सलमान अली। हाँ, फिर यार साउथ शकील वाज ड्रॉप्ड ऑन 2 बाय जो रूट। 3 मिस्टेक्स। अनडाउटेडली ही वाज टू क्लोज, ठीक है, और हेलमेट भी पहनी हुई थी और बहुत करीब वो हाई कैच आया था, मगर फिर भी ड्रॉप इज अ ड्रॉप। और सलमान साउथ ने फिर एंड में जाकर 31 मारे हैं, 29 रन आपने ज्यादा खाए वहां पे। कामी जी ड्रॉप किए डकेट ने 79 पे 4 इन द फर्स्ट इनिंग्स। फिर एक ऐसा कैच आया था बीच में, आई डोंट रिमेंबर हु द बैटर वाज, बट बैश जो है शोएब बशीर didn't even attempt it. उसके सामने आकर बॉल गिर गई। He's a terrible fielder. बहुत गंदा कैचर है, फील्डर भी बकवास ही है। He really needs to improve his game. आमिर जमाल का एक टफ कैच था जो ब्रुक ने छोड़ा था, हैरी ब्रुक ने, बहुत मुश्किल कैच था, उसको नहीं भी गिनो। They were unlucky as well. रिजवान की निक की बात की हमने, 6 पे रिजवान गया था, वो नहीं अपील ही नहीं हुई। And यार बेन स्टोक्स looked really frustrated in the field. तपा हुआ था वो अपने फील्डर्स पे काफी, you could really see that. So yeah, he even apologized later, Saadi, कि अपने प्लेयर्स को मैंने जाकर apologize to them कि मैं जरा ओवर रिएक्ट कर गया हूँ। बट ऑब्वियसली इतने जब आपके चांसेस मिस होंगे फील्ड के अंदर तो फ्रस्ट्रेशन तो आ जाएगी। आई फील लाइक दैट्स द बिगेस्ट रीजन व्हाई इंग्लैंड लॉस्ट दिस गेम। ठीक है, 152 रन्स आर साइजेबल, बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो ये कैचेस वगैरह कुछ पकड़ लेते अपने तो बहुत डिफरेंट गेम हो सकती थी। आई थिंक दैट्स वेयर दे लॉस्ट इट, बिकॉज़ आई डोंट थिंक दे बोल्ड ऑल टू पुअरली। नहीं, they were really good. They were all right. Their paces were really good. Jack Leach was pretty decent. अच्छा, जैक लीच का ये है, took 7 wickets in the last test and took 7 again in this one. 4 for 3 for in each innings in both test matches. And पिछले test match में I was really impressed with him. And I was like, at what point do we start considering Jack Leach to come back as England's main spinner in other conditions as well? अभी तो बशीर है ना यार। इस test match में Jack Leach was the best spin bowler across both teams on reputation. ठीक है, and तो गेम की बात कर रहा है। He took 7 wickets. You can make an argument कि third innings में शोएब बशीर bowled better than him. बशीर Bash took 4 for 66, right? Yeah. He was much better in the third innings. पहली innings में तो नहीं था अच्छा वो, मगर अगर आपको second bowling innings में जिसमें आप बहुत अच्छे होने चाहिए उसमें शोएब बशीर आउट बोल कर गए, तो I don't know if those 7 wickets were like Jack Leach level. I expected him to take 10. आई स्टिल फेल्ट के इंग्लैंड की ओवरऑल जो बॉलिंग थी ना, इंक्लूडिंग बैश, लीच, कार्स, पॉट्स एंड इवन बेन स्टोक्स, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। कोशिश उन्होंने की है और बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। Obviously, if the chances had been taken, it could have been a different story. But I mean, Leach से I expected a bit more, because अगर आपने 7 विकेटें रोड पे ले लिए तो यार जो हेल्पफुल सरफेस है उस पे तो आपको 11 लेनी चाहिए। आपको you should be able to pull off a Nomi Payen, ठीक है, नहीं कर मगर वो है एक ही ना, नोमी पायन असल में एक ही है। को कौन रेप्लिकेट कर सकता है? कोई नहीं, एक ही दफा बना था, एक ही दफा बनेगा। कोई है तो आए सामने। मैन मिथ पायन ब्रो, लेजेंड। ठीक है, तो खैर जैक लीच वाज अ बिट अंडरवेलमिंग इवन दो 7 विकेट्स हैं, so clearly he wasn't rubbish, but I expected him to be better. Shoaib Bashir had been having a terrible tour before that 4 for 66 and that
third innings. So I'm happy कि चलो उसको थोड़ा confidence मिला होगा. He has these glimpses of brilliance, but bows a lot of bad deliveries. Consistency नहीं है उसमें. वो रेहान अहमद का भी मसला था, if you know. But I think when he's at his best, तो शोएब बशीर is still good. Question, रेहान अहमद को खेलना चाहिए था इस पिच पे. मेरे ख्याल से खेलना चाहिए था. मैंने पॉल कॉलिंगवुड से सवाल भी किया था. In hindsight, they would have really been thinking कि यार किसी तरह रेहान की जगह बना देते, क्योंकि he turns the ball in both directions. तो वो और मिस्ट्री ऐड हो जाती है कि गूगली पकड़ी जाएगी कि नहीं पकड़ी जाएगी. And he did well in Pakistan the last time, yeah. And that's why I asked Paul Collingwood that question, right? Because it seemed to me at that point that they've made an error, right? But all in all, there are some positives. Shoaib Bashir finally getting some wickets. 4 for 66 is still good. Leach चलो यार, highest wicket taker है सीरीज का. 2 मैचेस में 14 विकेट तो है ना. Even though I feel like he was better in the first test as opposed to him in the second. कुछ विकेट दी भी है पाकिस्तान ने लीच को यार. शान मसूद ने लिटरली फेंकी है पहली इनिंग्स में. You can't be charging like that. Even that Abdullah Shafiq वाला जो बोल्ड था, played down the wrong line ना. That wasn't Jaffa. यार लीच और बैश का ये सिस्टम है कि you know where the ball is going to turn. हाँ. आर्म बॉल होगी या टर्न होगी, तो थोड़ा आपको बेहतर इनको अप्रोच करना चाहिए. इसलिए अब्दुल्ला शफीक से थोड़ी शिकायत थी मुझे, आई फील. बट इट वाज स्टिल अ रियली गुड डिलीवरी. लेकिन खैर इंग्लैंड की तरफ से जो बेस्ट बॉलर ऑन डिस्प्ले था, that was Brydon Carse. Brydon Carse, despite the spinners taking more wickets, he was brilliant. And he's had a brilliant series, right? He's taken 9 wickets at 24 on these sort of tracks. ठीक है, जहाँ पे मुश्किल है फास्ट बॉलर के लिए. क्या रिवर्स मारा था. पॉट्स भी अच्छा था वैसे तो, बट कार्स बेहतर था. कार्स बहुत अच्छा यार उसने 20 ओवर कराए हैं पहली इनिंग्स में. 3 for 50. On this track. Crazy. That is the best bowling performance for England. I feel that 3 for 50. दूसरे में भी यार 2 for 29 था in 9 overs. So he picked up what, 5 for 79 in 29 overs. It's crazy. That is brilliant. He bent his back. बहुत crazy channel करा रहा था. उसकी length impeccable थी. उसकी length with the new ball, with the reverse. He was great. He was sharp. He bowled his heart out. He was the quickest bowler on display. He is the quickest bowler on display in the series. और यार मतलब this is someone जो मैंने स्टोक्स से सवाल भी किया, who England are looking at as an all format prospect. ठीक है, बहुत इंजरी हुआ अपने करियर में. तो अभी भी थोड़ा सा हॉबल कर रहा था बीच-बीच में, लेकिन he stuck through it. बड़ी जान मारी है यार. और आई थिंक कि एशेज की टीम जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जो बार-बार खुद ही मेंशन करते रहते हैं, Brydon Carse is ahead of both Potts and even Vokes. Yeah. Vokes से तो obviously होगा. एटकिंसन और कार्स इंपॉर्टेंट होंगे आई थिंक. और जोफ्रा अगर तैयार कर देते, जोफ्रा को करना ही पड़ेगा यार. अगर वैसे कार्स, वुड और जोफ्रा हो ना ऑस्ट्रेलिया में, वुड तो नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया में. वुड है तो नहीं ना अभी नहीं है. नहीं मतलब साल के लिए नहीं बाहर हुआ वो. नहीं इस साल के लिए बाहर हुआ है. टिल द एंड ऑफ द ईयर बाहर हुआ. तो वो आ जाएगा वापस. तो उसको तैयार करो, जोफ्रा को तैयार करो, और साथ में कार्स रख लो, और एटकिंसन स्क्वाड में, और रख लो पॉट्स को भी स्क्वाड में. अच्छा अब हम एशेज की बात क्यों कर रहे हैं? वैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन हाँ अच्छा बन सकता है. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लाइक आई थिंक I won't take Vokes to Australia. Despite the fact that Jack Leach has 14 wickets, I feel like Carse's 9 are a lot more valuable. Valuable के अलावा उसको कंडीशन उस तरह सूट नहीं कर रहे. They're a lot more impressive as well. Yes. और यार मतलब पाकिस्तान स्ट्रगल्ड वर्सेस ब्राइडन कार्स. और मुझे तो पसंद आया. ही कैन हिट अ लॉन्ग बॉल एज वेल. अच्छा खासा छक्का मार देता है, बैटिंग डेप्थ देता है आपको. ही इज प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू. सो इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव्स, आई फील लाइक ब्राइडन कार्स इज द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर इंग्लैंड. ठीक है, इस टेस्ट मैच में. एंड द बॉलिंग यार, ऑब्वियसली लाइक आप मुश्किल वाली इनिंग्स में बॉलिंग करा रहे हो पहली इनिंग्स में. कुछ तो रन आपको पड़ने के, स्टिल अ प्रीटी डिसेंट विकेट टू बैट ऑन एट दैट टाइम. डे 6 विकेट ठीक थी, लेकिन लेकिन नहीं उसको कितने ही रन पड़े यार. किसको? कार्स को तो बहुत कम रन पड़े हैं. पड़े ही नहीं. इस मैच में 79 रन्स पड़े हैं, 5 विकेटें ली 29 ओवर्स में. That is crazy. I mean, run rate उसका इकोनॉमिकल है, विकेटें वो ले रहा है, and 9 wickets at 24 in these conditions are like phenomenal numbers. So really impressed with him. I think England have unearthed someone who they can really utilize in the future as well. For sure. और post Jimmy era में ना एक पहला ऐसा बॉलर नजर आया. He's impressed me more than Atkinson. Let's just put it that way. And Atkinson has taken heaps of wickets अभी recently. उसने 100 भी मारा है, मगर मुझे लगता है कि Brydon Carse can be a bigger asset. मुझे लगता है. आप डिसएग्री कर सकते हो. Let us know in the comment section. I like Atkinson as well, but in conditions में जहाँ पे बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिल रही. फर्स्ट फ्लैट ट्रैक है पाकिस्तान की बैटिंग. Good flat deck bowler, right? Great flat deck. He's quicker than Atkinson. So that also matters. और बॉय ने सही अपना, he's bowled his heart और प्रॉपर जान मारी. He's earned a lot of plaudits. और बनती थी इसकी बात करना. But anyway, ये बॉलिंग हो गई. इंग्लैंड की बैटिंग में आओ तो where else to start than Ben Duckett, the king of sweeps. Absolute sweeping galore of Ben Duckett's bat. मुझे तो शुरू से ही पसंद है. बहुत पसंद है मुझे. Another Islam United boy. Yeah. कोयटा ग्लैडिएटर बॉय भी है. फिर उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर का बन गया था. बट शुरू से ही मुझे पसंद था.
लेकिन I didn't expect him to make it this big in Test cricket, man. इतना बिग, मतलब बहुत ही शानदार है यार. एक तो brilliant. आता है ना जब बैटिंग शुरू करते तो फॉरन रन्स मिल जाते हैं. He was what 50 or 43. 50 इसने अपना इतना तेज किया है. और यार 100 किया इसने 114. इंग्लैंड का कोई भी एक और बैटर नहीं था who scored more than 37. बेहतरीन 100. ठीक है. Your next best score in your team is 37 across 2 innings. Ben Duckett scored 114. और क्या शानदार 100 था यार. स्वीप पे स्वीप. इसके पास चारों किस्म की स्वीप्स हैं. ठीक है. ही कैन पैडल, ही कैन स्लॉग, ही कैन रिवर्स एंड ही हैज द कन्वेंशनल स्वीप. यार इसके अंदर रिवर्स स्लॉग भी डालो, एक सब कुछ ही डालो. मेरे ख्याल से अगर आप बिल्कुल निटी ग्रिटीज में जाओ ना तो इसके पास कोई 15 स्वीपें होंगी. हाँ. कम से कम. और वो आपको सारी ये बताएगा तो नहीं, बट दैट इज हिज मेन स्किल. आई फील वो उसका भी लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, बहुत ज्यादा. तो वो बड़ा फिट खेलता है यार इस तरह की कंडीशंस में. एंड आई फील लाइक ही इज ग्रोन सो मच. Used to struggle at the start. Yeah, और फिर उसके आकर now he's become this extremely important player for Stokes' pass bowler की team. ठीक है. He is at the forefront of pass ball even. Forefront. क्योंकि ये क्रॉली जब आकर स्टार्ट दे जाते हैं ना, काम हो जाता है. और साथ ही 28 टेस्ट मैचेस हो गए यार. He's averaging 42 plus playing the way he plays. He leaves nothing. That's crazy. He leaves nothing. इसकी लोएस्ट वो लीव्स की परसेंटेज है पता नहीं कितने सालों में. उसके बाद यार तेज खेलते आकर. His strike rate is to die for. He is an excellent sweeper of the ball. Has the complete artillery of all different kinds of sweeps. And he only has 400s. Strike rate कितना है इसका, कोई आइडिया? यार 80 प्लस ही होगा टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट इजीली. 85 प्लस भी हो सकता है यार, जिस रेट पे आकर मारता है ना बेन डकेट. या बेन डकेट टेस्ट स्ट्राइक रेट 87. There you go. So it is more than 85 and that is phenomenal यार. 28 टेस्ट मैचेस, साथ ही अच्छा खासा सैंपल साइज है. 28 टेस्ट मैचेस, 41.34 एवरेज. अच्छा 41.34 हो गई है. पहले वो 42 थी because of that duck maybe in the second innings. 87 स्ट्राइक रेट, 4 सेंचुरी, 1150. बाय द वे साजिद ने निकाला था उसको सेकंड इनिंग्स में, तो साजू की वो भी इंपॉर्टेंट विकेट है. भूलो मत. मैं क्यों भूलूं? सज्जू डॉन. मैं नहीं भूलता. मैं That man with the crazy eyes. Nomi, Payen and Sajju Don. नाम दे दिए मैं. What a partnership. Yeah. But anyway, I think Duckett was the most impressive batter for England. 100%. और अगर वो 41 plus average कर रहा है at a strike rate of 87 and 28 test matches with only 400s, that only goes on to show you कि कितना frequently England को start देता है. हाँ. You know? कितना ये जल्दी score कर he sets up his teammates to do wonders. And the fact that no other English batter crossed 37 goes on to show you just how good this innings was. It's crazy. It puts everything into perspective, right? Shandar. One of my favorite players in baseball. In probably test cricket right now. यार if I had to pick, अभी मैं किम्बर से कल ये बात कर रहा था, टॉप टेस्ट ओपनर्स अभी पिक करें ऑन द स्पॉट. नहीं ख्वाजा और रोहित होंगे. नहीं होंगे तुम्हारे लिए? रोहित नहीं होगा. अच्छा मेरे लिए ख्वाजा रोहित होंगे. ख्वाजा होगा प्रॉब्ली डकेट या जायसवाल में से होगा. मेरे ख्याल से ख्वाजा रोहित जायसवाल डकेट. दैट्स माय ऑर्डर. नहीं आई टेक डकेट ओवर करुणा रत्ने. हाँ ऑब्वियसली. ख्वाजा, जायसवाल, डकेट, ये मेरे 3 है. अनरियल कंसिस्टेंसी है. ठीक है. और जिस रेट पे ये मतलब तेज स्कोर कर रहा है, लीव्स नथिंग. आई मीन ही इज सच एन एनोमली. एंड आई मीन आई वुड इवन से कि यू नो ही वाज द सेकंड बेस्ट बैटर इन द गेम. ठीक है. डक था इसका, मगर बहुत इसने क्रूशियल 100 मारा था. और उसके 100 के बाद आपने देखा है किस तरह ढेर हुए हैं. 211 for 2, 225 for 6, 262 for 9. That's how it went. And if you look at all of the English batters apart from Duckett, everyone swept. Sweeping, reverse sweeping, आंखें बंद के sweeping. Joe Root was sweeping off the wrong foot. A lot was happening. Joe Root failed. यार जहाँ पे आप कह सकते हो ना पिछली इनिंग्स में वो LBW के साथ थोड़ा लकी हो गया था. इस वाले में आप कह सकते हो कि मैंने नेकेड आई से ना भी होते वो, समझ रहे हो, जिस तरह का उसको वो आउट दिया. एक तो चॉप ऑन कर गया ना, मगर जो LB था भाई मैंने नहीं उंगली उठानी थी. मैंने पिछले वाले में उठानी थी, एम्पायर की उंगली शो कर. पिछले वाले में जब वो नसीम ने LBW किया था ना, उस पे मैंने उठानी थी. तो इट ऑल लाइक दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ कैचेस अप विद यू. इट इवन्स आउट. नहीं आए रूट के रन्स, ही इज ऑब्वियसली बाउंड टू फेल एट सम पॉइंट. स्टोक्स का रिकॉर्ड इन एशिया इज नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल. और ठीक है वो जो 37 है उसी की है फिर सेकंड इनिंग्स में. वो मारा था अपनी स्वीपर रिवर्स स्वीपर. मैं दिल में सोचा था कि एक स्टोक्स ही है जो फंसा सकता है यहाँ पे, मगर दीस कंडीशंस डू नॉट स्टोक कह रहा हूं, डू नॉट सूट बेन स्टोक्स. शॉर्ट पट खेल रहा था बैट के साथ अपने. ओलंपिक्स में भेजो, बहुत ऊंचा गया था वो बैट. ठीक है. हैरी ब्रुक एक्सपोज हुआ थोड़ा सा बिग टाइम. व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्पिन ही इज नॉट द जनरेशनल टैलेंट. और जिस तरह साजिद ने उसको आउट किया है, उसने बोला था, मैंने रजी भाई को पहली बॉल के बाद कहा था कि मैं इसको आउट कर लूंगा. और वही ही वाज कैंपिंग ऑन दैट बैक लेग. बैक फुट प्लेयर है वो प्रीडोमिनेंटली, और वो बोल्ड हुआ. ब्रुक को फ्लैट डेक दो, आई डोंट थिंक देयर इज अ मोर डेंजरस टेस्ट बैटर एट द मोमेंट देन हिम फ्लैट डेक पे.
थोड़ा सा टर्न मिल जाए ना ब्रो, he cannot. अच्छा वैसे आई थिंक ट्रू सर्फेसेस पे ना जब बाउंस भी ट्रू है वहां पे भी अच्छा है. या बिकॉज़ ही डज डू दैट रियली वेल. नहीं, he's really good. यार पेसर्स के खिलाफ भी ना ये कैप करता है बैक लेग पे, अपनी बैक फुट पे, और मारता है. जहां पे स्पिन का एलिमेंट आ जाना, he struggles. That is his Achilles heel. Yeah. Basically. It wasn't an impressive batting performance by England barring Duckett by any means. और ज़ाहिर अगर आपका next best score 37 हो तो that kind of speaks for itself. 25% of their shots were sweeps, जो नजर आ रहा था. तो थोड़ा ओवर रिलायंस भी अगर आपकी हो जाए ना शॉट पे तो वो भी अच्छा नहीं है. वहां पे मैं शान मसूद की कैप्टनसी या जिसका भी यार वो फील्ड सेटिंग बड़ी अच्छी थी. टू कट डाउन द स्वीप्स एंड द रिवर्स. You had those two sweepers out in the deep and you had close-in fielders elsewhere. कि मारो सिंगल लेना है, लो बाउंड्री नहीं. यार शॉर्ट लेग वगैरह या सिली मिड ऑफ हमेशा था. That was really important. I was impressed with the field settings from Shan. Field settings से सवा बेहतर. Attacking field settings थी और spinners के लिए ideal थी. इतनी भी अटैकिंग नहीं थी, बट थोड़ी सी और मुझे लगता है कि अटैक कर सकते थे जब वो सिली पॉइंट उसने 1-2 दफ़ा हटाए हैं. बट इंस्टेड ऑफ दैट जो उसने यही स्वीपर्स वाला काम किया था ना, टू कट डाउन द बाउंड्रीज, के भाई रन फ्लो जो है इनका रोको, ये तो स्वीप मारेंगे. एक उसने पॉइंट टाइप जगह पे लिया हुआ था ताकि वो रिवर्स को करे, रोके, ठीक है. और 2 उसने वहां पीछे स्वीपर्स लिए हुए थे, ठीक है, फाइन लेग और उससे थोड़ा और स्क्वायर. सो आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट एंड गुड ऑन हिम फॉर कीपिंग दोस फील्ड्स. इंग्लैंड वर आउटस्पन, ठीक है, पाकिस्तान स्पन अ वेब अराउंड, और उनकी ये वीकनेस है, वी ऑलरेडी नो दिस. वो फिर से एक्सपोज हुई, हैरी ब्रुक टाइप बैटर्स भी एक्सपोज हुए. मुझे मसला ये है ना, जब आपको पता है आपकी ओपोनेंट एक चीज में आप अपने ओपोनेंट से बेहतर, दैट्स प्लेइंग स्पिन. रिकॉर्ड शो दैट बाय द वे पिछले 3 या 4 साल में पाकिस्तान इज द बेस्ट स्पिन प्लेइंग टेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. अच्छा, हाँ जी, सबसे ज्यादा एवरेज है. एंड इंग्लैंड इज वन ऑन द लोअर साइड. या अभी उनसे इंग्लैंड के अंदर प्रभात जयसूर्या बीच में नहीं खेला जा रहा है. सो अगर आपको पता है कि आप एक अपोनेंट से एक चीज में बेहतर हो तो वही करो ना. फिर आप क्यों उन्हें एक जगह जहाँ पे आपने कोट खानी है. और शुक्र है यार कि लाइंस अटैकिंग थी, यू नो, रफ टारगेट कर रहे थे आप. एंड में तो बीच से भी स्पिन हो रहा था डाउन द मिडल ऑफ द विकेट. वो फिर बॉलर्स पे भी आता है ना कि वो उन्हें पता चल जाता है जो भी ज्यादा एक्सपीरियंस. नहीं, और हैरी ब्रुक को तो यही हम कह रहे थे ना यार, व्हाई वाज नो वन बॉलिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप टू हिम इन द फर्स्ट टेस्ट. उसको ट्राई तो करने दो, तुम लोग तो उसको लिटरली उसके व्हील हाउस में दे जा रहे हो. सो द प्लान्स वर गुड. इंग्लैंड आई थिंक 25% ऑफ शॉट्स इफ देयर स्वीप्स, दैट्स अ बिट टू मच, बिकॉज़ कभी कभार यार रिवर्स कर रहे हो आप अगेंस्ट द स्पिन, कुछ चीजें नहीं भी समझ आती हैं आपको. कभी कभार कन्वेंशनल स्वीप ही बेहतर होती है. आप विद द स्पिन स्वीप कर लो, अगेंस्ट द स्पिन आप स्वीप करोगे तो थोड़े मसले तो पैदा हो सकते हैं. उसके अलावा जब आप रन फ्लो वहां से रोक गया, या तो फिर कुछ और ट्राई. डकेट की जो वाइल्ड किस्म की स्वीप थी, वो फिर वही बात थी ना कि जो आपने इतनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट शॉट किया, उसी तरह आप आखिरी इनिंग्स में बुरी तरीके से आउट हुए हो. पाकिस्तान ने वो जो 2 विकेटें ले ली थी अप फ्रंट, उससे बड़ा फर्क पड़ा था. ब्रो वही टाइम था विकेट लेने का. पता था, लाइक एट दैट पॉइंट इफ यू आर ए बैटिंग पर्सन यू वुड पुट ऑल योर मनी ऑन पाकिस्तान टू डिफेंड 297. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. मैं बाकी लोगों को भी यही कह रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा. ब्रो मैं तो पहले कह रहा था 250 चाहिए, लीड विल विन द मैच. या 250 वाज अ गुड नंबर. और वो सलमान 300 वाज श्योरिटी. हां, तो थैंक यू टू सलमान अली और साजिद खान ने वो डाउट ही खत्म कर दिया. बहुत वैल्यूबल पार्टनरशिप है. देयर इज अ रीजन व्हाई आई थिंक सलमान's runs were the most valuable because they came at very crucial periods. खास तौर पे सेकंड इनिंग्स में. सेकंड इनिंग्स में 63 करना डिस्पाइट द ड्रॉप्स, इट्स स्टिल बिग. जो भी है, he made them pay, right? हाँ. और पता नहीं, आई फील लाइक ओवर रिलायंस ऑन द स्वीप शॉट इज नॉट द वे टू गो ऑन दीस सॉर्ट ऑफ सर्फेसेस फॉर इंग्लैंड आइदर. आई नो उनके रन्स बन जाते हैं, लाइक आप करो, बिल्कुल करो, मगर बी अ बिट मोर स्मार्टर विद इट एंड आई फील लाइक यू हैव गॉट अ गुड फॉर्मूला. यार हाँ, बट वही ना, ओवर रिलायंस उनकी इतनी ज़्यादा है कि मैं वही फिर से बात करूंगा कि यू नो आपकी एक एरिया है जहाँ पे आप रन्स मारते हो, अब वहाँ पे रन्स अपोनेंट ने रोक लिए आपके, नहीं आ रहे वहाँ पे रन, तो वही चीज़ क्यों किए जा रहे हो. ट्राई समथिंग न्यू. और ऑनेस्टली लाइक नोमी पायन को जिस तरह निकल कर ये मार रहे थे ना, आप नहीं अफोर्ड कर सकते. दैट मैन हैज कंडीशंस व्हिच आर टेलर मेड फॉर हिम एट दिस पॉइंट, डे 9 पिच, राइट. और नोमी पायन जो है वो चैनल में करा सकते हैं. ही जस्ट वेटेड फॉर देम टू मेक मिस्टेक्स एट टाइम्स, राइट. And he got heaps of rewards for और फिर इनवाइट किया उन्हें, ये लो लूप लो, आओ मारो, exactly. आओ मारो, बेट कर रहा था नोमी पायन, you know, and 8 for 46. I mean, what more can you ask for? मैंने पहले लिखा था ना कि नोमी पायन 5ers are what dreams are made of. फिर मैंने कहा था नोमी पायन 10ers are what heaven is made of, right? Like
crazy. What more can you possibly ask for? But I feel like England have it in them. They have enough character in that team to bounce back in the third test. ये ना आप सोचे कि बस अब इंग्लैंड को आपने पूरा मेंटली खत्म कर उनको आपने हरा दिए. नहीं. उनको भी अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो टॉस जीत जाते तो वो अच्छी पोजीशन में होते हैं मैच जीतने. अब मजे की बात यह है कि जो थर्ड टेस्ट मैच होगा वो स्पाइसी हो गया. Yes. अगर ये 2-0 होता तो फिर थर्ड टेस्ट मैच पे लोगों ने वैसे नहीं. अच्छा यार, वैसे मैं बड़ा सरप्राइज था. इवन एट टाइम्स पाकिस्तान वाज श्योर टू विन दिस टेस्ट मैच. क्राउड नहीं आया उतना मुल्तान में. नहीं, एंड पे डे 5 पे डे 4 पे फिर भी आ गए थे थोड़े से. आई जस्ट एक्सपेक्टेड इट टू बी नको नक भरा हुआ. ठीक है, पैक टू द राफ्टर्स. आई डिडंट सी दैट एंड आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड क्योंकि मौसम इतना बुरा नहीं था. मैं गया हूं यार वहां पे. ठीक है, इवन दो मैं तो चलो एसी वाले प्रेस बॉक्स में बैठा होता हूं. इट वाजंट लाइक टेरिबली हॉट व्हेन आई वाज देयर. पहले टेस्ट में होगा, लोग कह भी रहे थे कि यार पहले टेस्ट से बड़ी गर्मी थी. इसमें उतनी नहीं थी एंड काफी एडमिशन भी फ्री था. मैं बताऊं क्यों नहीं आए लोग. मैं नहीं बता रहा, मैं एक बंदे को कोट कर रहा हूं. Ramiz Raja thinks that's because, मतलब उसने डायरेक्टली तो ये नहीं बोला. Probably that's because Babar Azam. Yeah, I mean there are so many ways to talk about Babar's axing and make cases for it कि ये ठीक नहीं हुआ, but him being a sellable cricketer is not one. ठीक है, that was bizarre. And I mean, I spoke to Rambo a couple of times in this test match, right? But I was like, I probably shouldn't bring this up because क्या अब मैं डांट ही खाऊंगा. नहीं. Yeah. तुम हो कौन? और प्लस रैम्बो मीट्स मी वेरी नाइसली. यार वैसे क्या, why are you doing this? Why are you shooting yourself in the foot in this test match, right? And he did that many times. Yeah. Ridiculous. Commentary was poor, you'd have to say. Was way below average. यार इतना both Rambo and Amir Sohail. पिछले टेस्ट में बोला था, ट्वीट किया था मैंने कि I addressed Babar FC. I was like, तुम लोग जितनी बातें कर लो, none of you can ever out fan Rambo. और वो प्रूव ही कर दिया रैम्बो ने. You can't be that biased, man. I mean, that's not good for the game. It's ridiculous. And it's not like helpful either with the overall discourse. हाँ ना. आपको ही गालियां पड़ेंगी. और ये मार्केटेबिलिटी को जो आप बीच में ले आए हो कि बाबर आजम इज अ ब्रांड और उसको बेचना है. यार विंस, टेस्ट मैच विक्ट्रीज विल सेल पाकिस्तान क्रिकेट. ठीक है, देखो इससे पहले ब्रांड शाहिद अफरीदी था, शोएब अख्तर था, कंपेलिंग क्रिकेट विल सेल टेस्ट क्रिकेट. यार मेरी बात बीच में तुमने, मैं एक फ्लो में आया था. वो सारे स्टार्स थे. कहाँ तक पहुंचा? वकार यूनिस, वसीम अकरम, इमरान खान, ये सारे स्टार्स थे. शाहिद अफरीदी सबसे पहले स्टार्ट वहीं से किया था ना. शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान, इंजी, ये सारे स्टार्स थे. दे यूज्ड टू सेल सीट्स. ठीक है, रिटायर हो गए. क्रिकेट मूव्ड ऑन, पाकिस्तान क्रिकेट लिव्ड. बाबर आजम इज अनदर वन. विद और विदाउट बाबर पाकिस्तान क्रिकेट ने तो चलना है ना यार. एंड यू कैन मेक केसेस. हाँ, कुछ होते हैं स्टार्स किसी टीम में जो आउटवे करते हैं दूसरे प्लेयर्स को, लेकिन ब्रांड आपका पाकिस्तान क्रिकेट है. बाबर आजम स्कोरिंग 100 and Pakistan losing consistently will not fill the stadiums. It's detrimental, right? When Babar scores 100 and Pakistan wins, तब मैं कह सकता हूँ हाँ बाबर का भी फिट है. बट पाकिस्तान winning and Babar not scoring 100, would you think कि लोग देखने नहीं आएंगे कि बाबर ने 100 नहीं किया? You're basically saying कि Babar Azam is a bigger brand than the other players combined, which is wrong. Which is 100% wrong. Pakistan cricket is the brand. If Pakistan wins more games at Test cricket, या सिर्फ compelling Test cricket ही हो जाओ, your game will sell. I think at this moment Pakistan needs to win Test matches to get the bums in the stadium. और पहले से ज्यादा लोग आए हैं. ठीक है, फर्स्ट टेस्ट मैच से ज्यादा ही लोग आए हैं इस वाले टेस्ट में. क्योंकि कोई शक नहीं है, मगर भरा हुआ नहीं था. क्योंकि क्रिकेट इंटरेस्टिंग हो गई थी ना. अब आई थिंक मुझे लगता है पिंडी में थोड़े ज्यादा क्राउड आएगा. मुझे काफी फीलिंग है कि पिंडी भर देगा क्योंकि अब तो मौसम भी अच्छा हो गया यहाँ पे. मैं सुबह आया हूँ जब ठुठर रहा था मैं. ठीक है, नहीं मेरे यही लाइक शॉर्ट्स वगैरह, ये वाली नहीं, चेंज करके आया हूँ. मगर मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट ही पहनी हुई थी एंड आई वाज काइंड ऑफ शिवरिंग, राइट? सो इट हैज गॉटन कोल्ड इन द मॉर्निंग. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 6:30. रात को भी थोड़ा चिली हो जाता है. इट्स अ बिट निपी. हाँ, इट्स अ बिट निपी आउट हियर. निप हो जाते हैं. दिन में भी अच्छा मौसम है. उसके अलावा डेज शुक्र है थर्सडे से शुरू हो रहे हैं ना, तो डे 3 and day 4 विल बी सैटरडे एंड संडे. तो जहां पे सबसे कंपेलिंग क्रिकेट होगी फाइनली, हाँ, तो वो आपको वीकेंड पे मिलेगी. एंड आई फील के आफ्टर द परफॉर्मेंस इन द लास्ट मैच पाकिस्तान का सारे फैंस का भी एकदम वापस रिजुविनेट हुए हैं, तो आएंगे. या मुझे भी उम्मीद है पिंडी में क्राउड आएगा. आई मीन इट वाज नाइस टू सी कि मुल्तान में ज्यादा लोग आए पिछली दफा से. इट्स जस्ट दैट द लास्ट टाइम आई केम हियर फॉर टेस्ट मैच 2022 में भरा था. और वो डेफिनेटली वी हैव टेकन अ हिट सिंस देन. हमारी अपनी क्रिकेट भी गिर गई है, वो भी काफी बड़ा रीजन हो सकता है. ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज थी इधर पिंडी में जो मैच हुआ था, मैं देखने गया था, तो भरा हुआ था. डे 1 भरा हुआ था. और आपने क्या दिखाया उनको? रोड. उस पे That was the biggest road. उससे बुरी रोड नहीं देखी अभी तक हमने. वो ऑस्ट्रेलिया वाला पिंडी वाला टेस्ट. एंड डेविड वार्नर ने मार सादी 14 विकेट्स फेल इन द टेस्ट मैच. 14.
ठीक है. So that kind of speaks for itself. But you know, ठीक है, commentary की हमने बात कर ली. A lot of our JAANIS actually told us कि यार ये जरूर mention करना bias commentary वाला. एक पॉइंट ये था जो मैंने ट्वीट भी की थी, नासिर हुसैन ने सही ग्रिल किया था रमीज राजा को पिचेस डिबेट पे ना, कि व्हेन यू वर द चेयरमैन तो हमने ये चेंजेस देखी, तो उसके बाद से बस पिच जो है पाकिस्तान की वो कंडीशंस कभी भी सूट नहीं कर रही टीम को. ये वाली पिच अच्छी है इन रिगार्ड्स टू द टीम कॉम्बिनेशन दैट पाकिस्तान प्लेड एंड द आइडिया दे हैड, और आई वुड लाइक टू सी कंटिन्यूटी. इफ दिस इज द टेम्पलेट दे वांट टू प्ले विद, देन स्टिक विद इट, ब्रिंग कंटिन्यूटी. आई डोंट वांट टू कम बैक आफ्टर 2 years एंड सी अ डिफरेंट चेयरमैन, अ डिफरेंट कोच, अ डिफरेंट कैप्टन. देखने को मिलेगा ही. खैर उसने ये बोला. फिर बीच में कोई आमिर सोहेल ने कोई बोंगी मार दी थी, उसको भी उसने कोई शट अप कॉल दी. ये दोनों अच्छा ये हो रहा था. हाँ. मुझे तो यार उस तरह नहीं. I didn't hear the commentary in the press box. शट अप कॉल नहीं दी, बट उसका जो कमेंट था ना, उसको उसने रिप्लाई किया कि बेसिकली बकवास ही किया. मैंने तो क्लिप्स ही देखी हैं, ठीक है. There was that clip of Ramiz Raja questioning whether lemon was a fruit or a vegetable, which I mean it got a lot of hate, but that's the sort of conversations I have in my head as well. ठीक है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि यार ये फल है कि सब्जी है. But anyway, that was funny. Obviously, जिस तरह वो बाबर को प्रोटेक्ट कर रहा था and he made that marketability वाला comment, that was rubbish. There's no doubt about that. And यार वो ये भी कह रहा था कि it should have been Babar's call. Look, ये भी गलत है. It can't be Babar's call. और आपको, of course, you should be doing these things in a better manner, which doesn't ensue so much chaos. Magar these things are part and parcel of the game. No one player is bigger than the team. ठीक है. और बाकी I'm sure आप लोग बहुत डिबेट्स कर रहे होगे नीचे ऑलरेडी, जितनी हमने इस पे बात कर ली है. बट या आई होप के यार क्राउड्स तो आए पिंडी, जरा मुल्तान वाला डीजे भी ले आओ साथ. What a DJ. मुझे ऊंची आवाजें बीच में आती थी. He continued to set fire to the rain. Set fire to the rain. मॉल बना देता भाई वो, उसको पता नहीं किसने एडेल की सीडी लाकर दे दी, ठीक है. और बीच में वो ट्रैक्स में यूज किए उसने, वो बिलीवर वगैरह, स्काई फॉल. बट अच्छा माहौल बना कर रखा था. उस बॉय को या जो भी वो है उसको लेकर आओ यहाँ. I would love if that person is a woman, but I doubt it. बहुत मुश्किल है. मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का डीजे हर जगह. मैं कहता हूँ मेरी शादी के लिए मैं पकड़ रहा हूँ मुल्तान का डीजे, और पिंडी में तो उसको जरूरी लाओ. एक्सपेक्टिंग बेटर क्राउड्स, ऑफ कोर्स बेटर थे पहले टेस्ट से, बट स्टिल अंडरवेलमिंग. पिंडी में आई एक्सपेक्ट बेटर. एंड हियर्स टू होपिंग फॉर बेटर कमेंट्री एज वेल. ऑल्दो मैं फिर से प्रेस बॉक्स में होऊंगा तो मुझे तो नहीं सुनाई देगी. नहीं होगी बेहतर. क्या डू यू एक्सपेक्ट रैम्बो, आमिर सोहेल टू just fix up their mess? यार रैम्बो अगर बस ये बोंगियां ना मारे ना, तो I think he's a good caller of the game. He's a good caller of the game. Stick to that. Yeah, so do not give your analysis, and I do not want to listen to his analysis, bro. It's I have a bit of a nostalgic relationship with Rambo because I grew up with him. Yeah, I understand. And there was a long time till I idolized him as well. When he talks about the game के play by play कर रहा हो कि ये हुआ है, then he's good. जब वो बताने लग जाए ना कि अब पिच शेप कर रही है या ये कर रही है, उसे नहीं पता. And मुझे बात याद आ गई जो मोहम्मद हफीज ने बोली थी कि मेरे 12 साल का बेटा जो है उसका नॉलेज इससे बेहतर है. Maybe Hafiz was right. I don't know. Yeah, sometimes people just lose their touch as they get old. Probably. At one point, Rambo was the voice of Pakistan cricket. He was the voice of Pakistan. Now I would make an argument that Arooj Mumtaz is the voice of Pakistan cricket. She's kind of overtaken him in that regard. Arooj Mumtaz भी थोड़ा सा फैन गर्लिंग कर रही थी. अच्छा कर रही थी. मैंने तो सुना नहीं ना यार, तो मुझे इतना पता नहीं है, मगर मैंने इतने क्लिप्स वगैरह देखे नहीं तो पढ़ा उनके बारे में कि we obviously had to address this. यार बाबर being dropped was a big news. ठीक है, शुरू में आपने कर लिया, खत्म करो. अब बात है मैच की, और कामरान गुलाम वहां पे सेंचुरी हमारे, उसे अप्रिशिएट करो. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये, ठीक है. वी कैन हैव बोथ ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस इन आइसोलेशन. आप बाबर की सैकिंग पे हो सकते हो क्रिटिकल फॉर बेटर रीजंस, और ब्रिंग अप बेटर रीजंस, मेक अ बेटर केस देन रैम्बो डिड. दैट्स फॉर श्योर. वी हैव मेड अ बेटर केस देन रैम्बो डिड, राइट. हमने जो दोनों आपको साइड्स ऑफ द कॉइन दी हैं, बट एट द सेम टाइम व्हाई कैन यू नॉट अप्रिशिएट कामरान गुलाम फॉर हिज ब्रिलियंस? किया ना उसने आकर यार प्रेशर में. उस तरह तो अप्रिशिएट किया था उन्होंने. ये नहीं है कि बिल्कुल. मैं कमेंटेटर्स को बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूं कि ये दोनों चीजें एक वक्त पे हो सकती हैं. यू कैन बी क्रिटिकल ऑफ दैट एंड अप्रिशिएट हिम. कामरान गुलाम की वजह से बाबर नहीं निकला, बाबर की वजह से कामरान गुलाम आया है. और बाबर ने कांग्रेचुलेट किया कामरान गुलाम को और पाकिस्तान को. यार बाबर नहीं किया.
ये वाले बाबर के ही लग रहे थे, ज्यादा लफ्ज नहीं थे ना अंदर. बट दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, राइट? मिकी आर्थर ने सही वो पॉइंट आउट किया है, प्लेयर एजेंसीज का जो रोल है. बट एनीवे, आई थिंक वी प्रीटी मच डिस्कस्ड एवरीथिंग. लेट्स जस्ट फाइनली, इवन दो वी स्पोकन अ लॉट अबाउट द पिंडी सरफेस, 5 मिनट बाद आइडियल वर्ल्ड में तो यार दे गेट इट टू टर्न. आइडियल वर्ल्ड, बहुत ड्राई सरफेस हो, रिवर्स भी कम इनटू प्ले आए, और साथ बॉल दूसरे दिन से बल्कि मैं कहता हूँ थोड़ा सा टर्न लेना शुरू करे. ठीक है, लेकिन होगा नहीं है, नहीं हो सकता. आई डोंट थिंक पिंडी में पॉसिबल है. When I asked Shan this question, if you go and watch my press conference question, मैंने यही पूछा था कि यार ये रेप्लिकेट करना मुश्किल है कि आप किस तरह मैनेज करोगे पिंडी में. टेम्पलेट तो आपको एक मिला है, मगर क्या वो आप बार बार यूज कर सकते हो? He didn't even have an answer for that. He has no idea how the Pindi surface will play. और गए हुए हैं टोनी हेमिंग और आकिब. Hopefully they can curate its surface which turns. What I fear is they'll try to make it a dry spinning surface. और वो पूरा फट्टा बन जाएगा. और वो फट्टा बन जाएगा. यार अगर देखो, अगर स्पिन उतनी नहीं हो रही ना, तो लो एंड स्लो सरफेस हो. हाँ, मतलब स्टिकी टाइप ऑफ विकेट हो, ताकि फंस रहा है बॉल यार, ताकि बस रन स्कोरिंग आसान ना हो वहां पे. फंस रहा है बॉल. अगर आपने रन स्कोरिंग इंग्लैंड के लिए आसान की, तो मेरे ख्याल से you're playing into their game plan, right? You're shooting yourself in the foot, and it took Pakistan like around 3-4 test matches to realize that we can't curate flat decks versus England. ग्रीन टॉप में आपका चांस बनता है, मगर उनका भी बन जाता है. उनके तो बॉलर्स को हेल्प मिलेगी फिर वहां पे. सीमर्स, they've shown you that they've got decent seamers. और उनके बैटर्स आर बेटर प्लेयर्स ऑफ पेस. और आपसे नहीं, बिल्कुल बात ठीक है. तो तुमने शुरू में ग्रीन टॉप कहा था, बट आई हैव माय स्केप्टिसिज्म्स नाउ बिग टाइम. आई थिंक अगर तो आप टर्नर नहीं बना सकते, तो आपको स्लो एंड लो रखनी सरफेस डेफिनेटली. बट यू नो व्हाट, विल नेवर नो, बिकॉज आई थिंक दे डोंट इवन नो. ठीक है, it's just a lot of gambling going on in terms of like, you know, what the surface is going to be. मेरे लिहाज से जाके अगर ये डिस्कशन करें ना आके, या जो भी है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीसीबी और टोनी हेमिंग, ये जाके आपस में डिस्कशन करेंगे क्या कर सकते हैं, रादर देन आके टेलिंग हेमिंग की ये कर दो, तो बेहतर है. समझ रहे हो? आई थिंक हेमिंग से पूछें कि यार क्या क्या पॉसिबल है, और उस हिसाब से करें. बट दे नीड टू समहाउ come up with a surface that has something in it for the bowlers. We do not want to see dull test cricket. नहीं, हम थक गए, अग गए हैं, अब मसले मुके हैं, वापस ना लाना. देखो, फ्लैट डेक बना दिया ना, 1000 मार रहे हैं, वो तपे हुए बैठे हुए. हाँ, वो 1000 मार देना फ्लैट डेक. वो आएंगे और वो 600 मारेंगे एक दिन. पिंडी में हमने अभी देखा था कि एक बड़ी जबरदस्त सरफेस क्यूरेट की थी बांग्लादेश वाले सेकंड टेस्ट मैच में. यू नो व्हाट, अगर स्पिन ट्रैक नहीं बन सकता, वही बना दो. मैं तो कहता थोड़ी सी और हार जाओगे आप, मगर कम से कम विल गेट अ कंपेलिंग टेस्ट मैच एंड यू विल ऑलवेज बी इन द गेम. अगर तो आपने बिल्कुल ऐसी पिच बना दी जहाँ पे बैटिंग डोमिनेट करेगी, तो फिर वही डोमिनेट करेंगे आपको. आप डोमिनेट होगे सिर्फ. कैंट अफोर्ड दैट. गो फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट. इवन इफ यू हैव टू टेक दैट गैम्बल एंड रोल द डाइस की टॉस डिपेंडेंट सरफेस बना दो, कर लो, एंड होप फॉर द बेस्ट देन. एंड देन इवन इफ यू लूज द टॉस, शो सम कैरेक्टर. प्रूव साद राइट. वो कह रहे ना कि नहीं, तब भी चांस होता, मुझे मुश्किल लग रहा है चांस. साद को राइट प्रूव करो. चांस होता फिर भी. डिपेंड करता ना कि आपके स्पिनर्स ज्यादा परफॉर्म करें या उनके स्पिनर्स ज्यादा परफॉर्म करें. आई स्टिल थिंक वी आर बेटर प्लेयर्स ऑफ स्पिन एज कम्पेयर टू इंग्लैंड, इसलिए मैं चांस कह रहा हूँ. वरना अगर फॉर एग्जाम्पल कोई और टीम ले आओ, बांग्लादेश ही ले आओ, हम अगर इंग्लैंड सीम पे आउट कर देती हमें. हाँ. ये भी तो है ना यार. खैर, ऑल इन ऑल आई फील लाइक वी आर रियली सेट अप ब्यूटीफुली फॉर ए सीरीज फिनाली. हम तो तरसे हुए थे इस तरह कोई मोमेंट आ जाए. होपफुली तुम जाओगे? पता नहीं, आ जाओ, देखना पड़ेगा. देखता हूँ मैं if I can arrange something for you. मैंने आज तक वैसे पास नहीं मांगा किसी से, मगर तुम्हारे लिए शायद मैं मांग ही लूँ. हाँ, ये होता है ना. मेरे प्रिंसिपल से खिलाफ है ये पास मांगना, बट नहीं, फिर रहने दो. प्रिंसिपल यार, आप नौकरी करने के लिए, व्हाई डू यू वांट टू आस्क पीसीबी फेवर्स? आई जेन्युइनली डोंट लाइक टू आस्क एनीवन फेवर्स. मैं अपने दम पे ही करना चाहता हूं. मैं भी नहीं तुम्हें कह रहा, तो डोंट गेट देम. चलो, खैर, एक मैं बस वो जाते जाते नैकर्स को रिमाइंडर दे दूं. मोहसिन भाई, 3 चीजें थी, बल्कि 4 हो गई थी वो. एक, आप स्टेडियम अपग्रेड कर रहे हो, टाइम में कर लेना स्टेडियम अपग्रेड. यार, आई स्पोक टू सम पीपल फ्रॉम द ईसीबी इवन, एंड दैट इज अ कंसर्न कि वक्त में खत्म होंगे कि नहीं. बट प्लीज मेक श्योर दैट हैपेंस. वुमेन्स पीएसएल चाहिए हमें, ठीक है, हर सूरत में चाहिए. चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया नहीं भी आती, पाकिस्तान, बाकी सारी पाकिस्तान में ही होनी चाहिए. सही. We want a champions trophy, not a champions trophy. Not a champions trophy. बट चलो यार, हाइब्रिड सोल्यूशन भी हुआ तो सिर्फ इंडिया बाहर खेले पाकिस्तान से, बाकी सब पाकिस्तान में खेले. और आखिरी चीज, आई होप इट इज हैपेंड बाय नाउ, बट प्लीज प्ले द प्लेयर्स.
play the players कह दी मैंने, please pay the players. I don't think it's happening right now. Women's cricket में भी, men's cricket में भी, that is imperative that you pay the players. थोड़ा professionalism होना चाहिए. बाकी यार, best of luck to everyone. Best of luck to Pakistan and England. Hope we get a riveting test match in Rawalpindi as well. And this was a marathon show. I know a lot of you were waiting for it. लोग मुझे डेवू के, मैं वो रोड मास्टर से आ रहा था. By the way, अच्छी बस है रोड मास्टर. रस्ते में कह रहे सर शो कब आएगा, मैंने कहा यार मैं पहुंच तो जाऊं, एक तो तुम लोगों के लिए मैं पहुंच रहा हूं, मीन सैक्रिफाइस कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग ऑन अ डेट दैट आई कुड हैव गॉन ऑन विद माय गर्ल. अर्स नहीं है वो स्पोर्ट्स साइड वाला, ही वाज क्लेवर अबाउट इट. उसको पता था कि तुम मुल्तान में हो, तो उसने कल ही मेरे साथ पॉडकास्ट कर लिया कि फ्री हो गए अभी, आप लोगों ने नहीं करना है पॉडकास्ट. मैंने कहा यार तुमने अच्छा सोचा. और अच्छा, जाने से पहले मैं एक और बात डिस्कस करना चाहता था तुझसे यार, वो बाबर की बर्थडे भी आ गई थी डे 1 पे. आप लोगों को मैंने सोचा जाए तो what a shit birthday that would have been. He was happy though. He was happy for Kami ji. Then वो वीडियो भी आई थी, he was eating his cake. अच्छा, मैंने नहीं देखी वीडियो, I missed the video entirely. But चलो यार, बाबर bounce back. देखो शर्ट अभी भी रखी हुई है. शर्ट नहीं उतरेगी, शर्ट नहीं उतरेगी. जितने भी लोग ट्रिगर होते हैं कमेंट सेक्शन में, शर्ट वहीं रहेगी. कुछ लोग कहेंगे हम बाबर हेटर्स हैं, कुछ लोग कहेंगे हम बाबर फैन बॉयज हैं, साया कॉर्पोरेशन के एजेंट्स हैं. वो लोग तो बातें करते रहेंगे. We'll continue to try to cover the sport objectively. But just like, you know, on the birthday thing, personal story एक share करूं. हाँ, कर लो. I have both dumped someone on their birthday and been dumped on my own birthday, and I can tell you that is a really terrible feeling. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें. हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन और इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर. उसके अलावा बूथियां पसंद ना आई हो हमारी तो Spotify और Amazon म्यूजिक पे भी हमें सुन सकते हैं आप. उसके अलावा चिल मारो, टेस्ट मैच का इंतजार करो. उसके अलावा बीच में जो ब्रेक्स हैं उसमें भी काफी पॉडकास्ट आ रहे हैं आपके पास. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. Nomi Payen, na 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 Nomi Payen, bolo bolo Nomi Payen.